a message from someone that they want somebody from Pakistan to translate. Okay. Yes. Okay. From a person, A. Fernandez or something. Just now? No, day before yesterday. Okay, okay. Okay. Fine. They prefer Pearl's translation. Mhm. So I thought I will help out when you all need, but I'm taking notes and learning. Praise God. Don't worry. Is That coming? you will be speaking very fluently very soon. In fact, I learned a lot and I shared a testimony with a Pakistani Muslim man. Praise Soon God. after the Hindi session, I was able to pray for his mother in Pakistan in the language that he understands. Praise God. Praise God. So I'm not in strife because of what that person says. God bless him. But it is better if they are logging in for a particular reason. Let them be blessed in that way, is what I mean. Amen. Ji. Amen. But Sister Swaroop would like to share her testimony. So, Yeah. yeah. I just So I can help also. Okay. So Dinah, you say the opening Praise the prayer. Lord. Yeah. Okay, so I'll just. you can ask Papa's help to translate for you. No, I speak Hindi. मैं हिंदी बात कर सकती हूँ. Okay. मुझे Praise हिंदी God. आता है. मुझे Try to पाकिस्तानी, हाँ जी, पाकिस्तानी सेशन के लिए आना चाहिए था और मुझे कुछ ब्रदर जॉनसन. 1 minute, huh? Brother Jude is No live need. coming. Yeah, it's Yeah. recording. Yeah, but I don't know whether live has started. YouTube live, no. No, not yet. It doesn't show. No. No, Live you is not- you start, sister. In between, I'll come. Brother Johnson also is here. He will also join. I'll go on mute, okay, and no video from me, okay? Okay. I'll be in the session after about 5-10 minutes. I'm just about to finish something. Okay, Dinah. Those who are asking, the live is not yet started, but we are recording and uploading it later. Okay, praise God. Thank you, Jesus. Okay. God. Sister Brenda, you can start. Okay. Sister, let me check if Annie has come. Just one Yeah, second. please. Take your time, sister. Praise God. Praise God. Sister Josephine, I'm starting. Yeah, sister. खुदा बाप बेटे और यकुदस के नाम से शुक्र है बाप आसमानी तेरी हर खुशी के लिए, तेरी हर बरकत, हर फजल के लिए जो तूने हम पर बख्शा है और तेरे कलाम, तेरे वादे जो तूने हमें सिखाया है कि तूने हमारे बंद आंखों को खोला है, हमारे बंद कानों को खोला है और हमारे लबों को तेरे वादों और तेरे नाम को जलाल के लिए खुदावंद तूने खोला है कि जो कुछ भी आज हम सीखते हैं ये कि हम उसमें 10,000 उससे ज़्यादा गुना हम फल अपनी ज़िंदगी में और हम ऐसे बीज बोए कि वो हम फलदार हो तेरे नाम को जलाल देने के लिए, तेरे कलाम को आगे बढ़ाने के लिए। आज की जो कलाम है खुदावन उसे इतना आसान कर दे कि हम सब अपनी ज़िंदगी में उसे अमल करना सीख ले, शुरू कर दे और हम आगे बढ़ते हुए तेरे कलाम को पूरी दुनिया में तेरे नाम को जलाल देने वाले हो। आमीन। Amen. Praise the Lord.
Yes, Sister Jocelyn. Are we taking the testimony Yeah. first? We'll take the testimony. Sister Swarup, you can come, but with the condition you have to put the video on. Sister Jocelyn, Yeah. brother would like to join also. So just give, let Diana also be there, because this is part of Diana is also involved in this testimony. Yeah, she's there already. 1 minute. Yeah, brother also will be there, because I want brother also to be there, and brother is praying for. Coming? Yeah, he's praying for somebody who's come here. So after that, because he messaged me, can you take the session? Yes, you can. You will be taking, but he will come. Okay, if he's coming, good. Because transcription. Yes, also, exactly. So that's why I wanted. Yeah, he will start the class. Yeah, Sister, he will come now. Okay, then we can. I will give my testimony. Yeah. Thank you, sister. Thank you. Sister Swarup, you can put your video on. It's okay if my video is off here. Yeah, Diana. Once you finish, then you can put on the video. I'm not putting on my video because my laptop is out today. Okay. Oh, we are all having similar issues. My daughter's online class is not over yet. Oh, praise God. Sister Jocelyn, are we starting? We're waiting for brother. Yeah, Sister Swarup. Let me see if Papa has come home. Sister, you have anything to say, Sister Branda, by the time Papa comes? Yes, sister. I have बहुत सारे चीजें हैं मेरे पास. You can share. मेरे सब बहन भाइयों को मेरा सलाम. मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन की बात पहले है कि मैंने जब से ये ब्रदर जॉनसन के साथ हमने कलाम करना सीखा है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखी है. बहुत कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी मैं किस तरह से लेकर चलूं, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है. और खुदावन का शुक्र हो कि कलाम के मुताबिक मेरी जिंदगी में बहुत सारे फजल और बरकत है, और आने वाले दिनों में भी खुदावन का फजल और बरकत हमेशा मेरे बच्चों और मेरे साथ रहेगा. मैंने कलाम में इतनी सारी चीजें सीखी कि कुछ मैं सिर्फ सुनती और सीखती गई, और ऐसा हुआ कि मैंने सिर्फ सीखा है और सुनती गई. मैंने उन सब चीजों को अपने दिल में, अपने मन में बसा के रखा था, दबा के रखा था. मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैंने जो सीखा है, खुदावन के वादे, खुदावन का कलाम जो सीखा है, मैं उस खुदावन के नाम को कैसे जलाल दूं. खुदावन ने मेरी जिंदगी में अपना जलाल दिखाया है, तो मैं ये खुशखबरी दुनिया में अपने लोगों, अपने दोस्तों के साथ कैसे पहुंचाऊं. मैं बहुत सारे कलाम सुनती गई, और एक होता है ना कि जैसे रूह बेचैन हो जाता है, तो मैं एक बेचैन रूह की तरह, एक बेचैन बोटी की तरह, मुझे मालूम नहीं पड़ा था कि मैं क्या करूं. मैं गैर ज़बान में दुआ करने लगी, और मैं मैंने खुदावन से ये कहा कि तूने मुझ जैसी बेटी को तूने अपने नाम को जलाल देने के लिए चुना है, मुझे अपने फौज में भर्ती किया है कि मैं तेरे नाम को जलाल कर दूं. तो तूने मेरे रास्ते जो खोले हैं, मुझे मेरी बंद आंखों को खोल दे, और मेरे बंद लबों को तेरे नाम को जलाल देने के लिए बता. तो ये हुआ कि दो दिन पहले कि ब्रदर ने अपनी एक श्रीलंकन बहन थी कि ब्रदर ने उन्हें तकमीन की किताब से उसका पहली आयत से चौथी आयत तक उसे समझाया. उसे 4 साल से तकलीफ थी अपने जिस्म में, जो डॉक्टर ने, साइंस ने गिव अप कर दिया था कि वो उसका इलाज नहीं कर सकते.
तो ये बहन जब हमारे साथ कनेक्ट हुई हमारे हिंदी सेशन में, ब्रदर ने उन्हें ये कलाम समझाया कि किस तरह हम जिस धरती पर रहते हैं कितनी अंधेरा था, कितना वीरान था, कितना बेजान था, और पाक रूह की जुम्बश जो हो रही थी वो उस दरिया के ऊपर हो रही थी, घूम रहा था। मगर जब खुदावन ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हो गई, इसी तरह हमें भी अपने लबों को खोलना है खुदावन के कलाम के साथ, खुदावन पर ईमान और यकीन करते हुए। हमें कलाम से हमें कितनी शिफा मिलती है, कलाम से हमें कितना सुख मिलता है। जब ब्रदर इस बेटी को समझा रहा था कि हमें अपने लबों को खोलना है और इतराफ करना है कि 4 साल से ये बहन यही बोलती रही कि मेरे जिस्म में कितना दर्द है, और ये बोलने से उसका दर्द कम नहीं हुआ पर उससे दुगना होता गया। जब ये बहन ने इतराफ किया और उस रूह को, जो बीमारी की रूह को उसने हुक्म दिया अपने जिस्म से निकलने के लिए, उसे तुरंत शिफा मिल गई। 50% उसे शिफा मिली जब वो ब्रदर उससे कलाम सुना रहा था, और 50% उसे मुकम्मल शिफा मिली जब उसने अपने लबों को खोलकर इकरार किया यीशु का। जब उसने वो अथॉरिटी, वो कॉन्फिडेंस से यीशु के वादों के मुताबिक ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए, जब उसने ये अपने लबों से इकरार किया और उसे तुरंत शिफा मिली। इसी तरह जब ब्रदर ये समझा रहे थे, मैं लाइव नहीं थी, मैंने रिकॉर्डिंग सुना था, और मुझे वही बीमारी जो ये बहन के साथ था, मुझे वही बीमारी 25 साल से था। और जब मैं ये सुन रही थी, मैं ख्याल से रात को 10 बजे था, मैं जब ये सुन रही थी, सुनते सुनते मुझे मुकम्मल शिफा मिला। 25 साल से जिस बीमारी से मैं जा रही थी, मैं दवाएं खा रही थी, मैंने हर चीज किया, मगर सुनते हुए, उस पर ईमान और यकीन रखते हुए मुझे मुकम्मल शिफा मिली। प्रेज गॉड। फिर उसके दूसरे दिन ये हुआ कि मैंने जो भी सीखा, मैंने मुनादी करना शुरू कर दी। मैंने एक बेटी है लाहौर में, वो स्टेप मदर है, उसके बच्चे उससे पसंद नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, उससे अपने फैमिली में इनवाइट नहीं करते हैं। उनके डैडी की डेथ 1 साल पहले हो गई, पर फिर भी उनकी माँ यही आस लगाए हुए कि उसके बच्चे उसे प्यार करें। हमने कल अग्रीमेंट प्रेयर किया, हमने यही कलाम लिया तकमीम की किताब से, और फिर हमने एक अग्रीमेंट प्रेयर किया कि खुदावन उसके बेटे और इसकी बेटियों के दिल में, जो पाकिस्तान में नहीं है, बहुत दूर है, मे बी वो उस वक्त सो भी रहे थे, बट हमें पूरा ईमान था कि खुदावन जागा हुआ था, खुदावन उधर मौजूद था। हमने अग्रीमेंट प्रेयर करते हुए किया कि खुदावन उनके दिल में अपना प्यार भर, कि इस माँ को वो अपनी माँ समझे। और जब हम प्रेयर कर रहे थे, ये माँ इतनी रो रही थी कि प्रेयर के बाद इसने शुक्र किया खुदावन का, और उसने कहा कि यीशु ने मेरे बच्चे मुझे लौटा दिए अपने प्यार के द्वारा। प्रेज गॉड। हेलो सिस्टर जोसलिन, are you there? Yeah, I'm there, sister. Did you understand? No, I didn't. Okay. But no problem. Others would have understood. Yeah, I don't know what happened to Sister Swarup. Papa. Sister Swarup? Yes, I'm here with brother. Because if I start my phone, then we have, the Echo. Yes. Yeah. So I want to- Sister Saurabh, Yeah. did you understand? Did Yes. you understand what I said? मैं हिंदी में बात करती हूँ, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, फिर भी बात कर सकती हूँ। Praise God. हाँ जी। बट ब्रेंडा बेन, Yes, brother. आपका जो गवाही था ना, जी। मेरा तो पूरा पैसा वसूल हो गया। पाकिस्तान में नहीं आके भी पैसा वसूल हुआ। क्या बोलते हैं डायना बेन? हाँ सही है ब्रदर, सही है। अरे 25 साल का बीमारी निकल गया। जिस माँ को बच्चे नहीं प्रेम कर रहे थे,
और माँ के साथ प्रेम करना शुरुआत हुआ, यार अपना तो पाकिस्तान का पैसा वसूल हो गया। Praise God, praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं थोड़ा वड़ा पाव खा रहा था जब ये बोल रहे थे ना खवाई जी डायना, हाँ, मैं थोड़ा वड़ा पाव खा रहा था अभी। Yeah, we can hear that you're eating something. क्या बस क्या अकेले अकेले? And we know that's why the video is off. तो वड़ा पाव खाते खाते इतनी अच्छी गवाही मिली, मैं तो बोला ये इसमें तो बहुत मजा है, पेट में भी मजा, दिमाग में भी मजा। Praise God. ब्रेंडा बेन और सब लोगों को क्या बोल रहे आप लोग, क्या बोलते हैं? नमस्ते। नमस्ते। ओके, हाँ क्या नमस्ते। ठीक है। नहीं, मेरा यही कहना था, मेरा टेस्टिमनी ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू परिवार में से हूँ और मैं यीशु को मानी हूँ, और बहुत पोटा में मुझे आप लोगों को मालूम नहीं, आप जानते हैं कि पोटा केरला में है, उधर मुझे यीशु का मीन्स आई एक्सेप्टेड जीसस देयर, और बहुत साल चर्च जाती थी, सब करती थी, बट 2009 में मुझे कोई बताया कि ब्रदर जॉनसन करके इधर आते हैं बॉम्बे से और बाइबल पढ़ाते, तो मुझे बहुत सी वर्ड के लिए आई वॉज वेरी हंग्री फॉर वर्ड, तो मुझे मालूम पड़ा मैं जाना चाहिए। फिर मुझे कोई लेके गया था ब्रदर को उधर मीटिंग में, तो जब भी मैं गई थी तभी मुझे होली स्पिरिट में बोला कि ये ब्रदर तेरे को बुलाएगा और गिफ्ट ऑफ टंग्स तुझे मिलेगा। मैं जब भी उधर पहुंची तो पहले बार, तो जब भी खत्म हो रहा था 2-2:30 बजे, तो ब्रदर ने मुझे बुलाया और बिठाया कुर्सी पे और गिफ्ट ऑफ टंग्स तभी मिला। उसके बाद मुझे ब्रदर का टीचिंग बहुत अच्छा लगा और हर महीने हम लोग ब्रदर को मिलने जाते थे। तो फिर मैं एक बार गई दूसरा महीने, तो मुझे काम नहीं था, हम लोग कनाडा से इधर आए थे, तो थोड़ा आर्थिक स्थिति इतना ठीक नहीं था, तो फिर मैं बच्चा भी छोटा था तो काम भी करना चाहिए था, तो फिर मैं एक पार्ट टाइम जॉब मिला था, वो मुझे मिला था, तो उधर मैं काम कर रही थी। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग मेरा लैंग्वेज? जी जी समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। Even I can understand. आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन। तो फिर ब्रदर को मिलने गई थी मैं उधर, तो फिर ब्रदर ने मुझे पूछा कि काम कर रहे हूँ? हाँ मैं काम कर रही हूँ और मेरा पार्ट टाइम है। तो फिर मुझे तभी 4000 मुझे पगार था। तो फिर मैंने ब्रदर ने बोला देखो ये व्हाइट बुक दिया, और उसने बोला कि 2 कंसर्निंग वरी एंड फियर और मटेरियल नीड्स, ये 2 प्रेयर करो, अगला महीना मैं जब भी आती हूँ तभी तुझे परमानेंट जॉब मिलेगा। तो फिर मैं आई, तो फिर डेली वो कंसर्निंग वरी एंड फियर और मटेरियल नीड्स बोलने शुरू की, रोज हर दिन, इतना टाइम मुझे मालूम नहीं, मैं बोलने लगी। तो फिर इससे पहले मुझे बहुत बड़े बड़े कंपनी से इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, किधर भी नहीं होता था, फाइनल तक पहुंचती थी नहीं होता था, तो मुझे बहुत दुखी होता था। फिर मैं क्या तो आफ्टर ब्रदर को मिलने से 3 दिन के बाद एक एजेंसी ने मुझे फोन किया और बोला इंटरव्यू है, जाना है। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए, उधर वो बॉस ने मुझे कुछ क्वेश्चन ही पूछा नहीं, और कैसी है, क्या है, बच्चा है, ऐसा बात किया, और मैं बोला ओके हम लोग बता देंगे। मैं टैक्सी में घर पे आ रही थी, 3 मिनट में मुझे कॉल आया कल से ज्वाइन करो। और ये कंपनी इतना बड़ा कंपनी है, ऐसा ये सब नहीं होता है, उधर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट बहुत रहता है। तो फिर मैं गई, तो मुझे पगार ना मीन्स मैं जो कमाती थी उसका 4 टाइम्स 4 गुना ज्यादा पगार और इतना फैसिलिटीज, मैंने इतना खुश हो गई। तो फिर कंटिन्यू किया, और मैंने ज्यादा ब्रदर का जो वीडियोस है वो सब देखने किया,
चालू किया। और मेरा हस्बैंड भी इतना वर्ड में नहीं था, तो फिर मैं दूसरा महीना मेरे हस्बैंड को भी लेके गई ब्रदर के पास, और ब्रदर और मेरा हस्बैंड इतना अच्छे दोस्त बन गए। और ब्रदर मेरे हस्बैंड अभी बाइबल स्टडी चलाते दुबई में, बहुत लोग जाते हैं और बहुत अच्छे। और जिंदगी ब्रदर को मिलने से बहुत ही मतलब वर्ड, मेनली वर्ड, और ब्रदर का दिल इतना क्लियर, और उसका ऐसा इंसान मैं देखा नहीं जिंदगी में। तो फिर मुझे और भी वर्ड से प्यार हो गया, और यही प्यार मुझे बांटना है। तो जो मिलते सबको बोलती ब्रदर का रिट्रीट के लिए आओ, रिट्रीट के लिए आओ। वैसा ही मुझे डैना मिली। डैना और मैं सेम कंपनी में काम करते थे, तो ऐसे डैना मिली और डैना को बच्चा नहीं था, तो फिर मैं डैना को बोली कि ब्रदर का रिट्रीट के लिए आने को। तो फिर डैना आई, और आप तो सुना है उसका टेस्टिमनी। और ऑफिस में एक आदमी था, बहुत तंग करता था, बहुत मतलब बहुत तंग करता था, कुछ रीजन नहीं है तंग करने का। तो फिर मैं बहुत ब्रदर को बोली, मैं बहुत गुस्सा था, बहुत, आई यूज्ड टू हेट हिम अ लॉट। तो फिर ब्रदर बोलते नहीं, फॉरगिव करना है। तो फिर मैं बहुत मुश्किल से प्रेयर किया और फॉरगिव किया। उसके बाद क्या होगा, मुझे वो डिपार्टमेंट निकाल के दूसरा डिपार्टमेंट में भेज दिया, और इतना और भी बड़ा और इतना अच्छा हो गया कि मेरा पगार बढ़ा, प्रमोशंस, बोनसेस, बहुत मतलब जब भी हम फॉरगिव करते हैं, देयर इज पावर इन फॉरगिवनेस। और तो फिर ये बोलना था कि अभी बहुत अच्छा है जिंदगी, और मेरा यही है कि बोलना कि और लोग आप पाकिस्तान में अभी पहुंच गए हैं, मुझे आप लोग शेयर करो ब्रदर का टीचिंग्स, और लोग आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे को डायना मेरी इतना बड़ी दोस्ती है, और उसको जो बीमारी कुछ हो रहा था, मैं मेरे घर पे आती थी ब्रदर को मिलने, मुझे नहीं बताई, इतना क्लोज, मुझे नहीं बताई। 1.5 साल मुझे डाउट आया था, मुझे मालूम था, बट मैंने भी प्रेयर कर रही थी उसको। तो मैं एक क्या कहना चाहती हूँ, मैं जो बुरा नहीं लगा, ये क्या कहना चाहती हूँ, ब्रदर ने जो सिखाए, हम लोग जो डिजीज है उसके बारे में बात नहीं करने का, she fought the battle with the word of God। तो यही बोलना चाहिए था कि हम लोग जो नेगेटिव नहीं लेना है, जस्ट स्टडी द वर्ड जो ब्रदर ने दे रहे, that is like real diamond, we have to treasure it, work hard on it, and हम लोगों को तो विक्ट्री मिलेगा, यही बोलना था। और तुम लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, पर्ल का टेस्टिमनी सुनी, बहुत मुझे अच्छा लगा। जूलियस भाई आप रोज आओ और सुनो, बस सबको मेरा प्यार। Amen. Amen. जोसलिन कंटिन्यू। 5 मिनट में खत्म। No, Paul is not there to translate. No, what I'm saying, Yeah. she gave a testimony and finished the testimony जैसा राजधानी की गाड़ी, I don't know. Okay. जैसा राजधानी की गाड़ी होती है ना, ये लगा दिया, चालू हो गया तो खत्म कर दिया। कुछ तो समझाओ, तुमने क्या क्या बोला, कौन सा स्क्रिप्चर बोला, कैसा हो गया, कितना रोया, कितना हंसा, क्या बोलती है डायना मैम? सही He है। went very fast. She finished her life of 10 years. years. अच्छा, मैं थोड़ा इसको समझा सकती हूँ, थोड़ा ऐड कर सकती हूँ। कर पहले ना ब्रदर, जब भी इसने स्वरूप ने मुझे बोला कि हम लोग को पोटा जाने का है, तो मैं बोला ओके। मैं मेरे हस्बैंड को बोला जाएगा हम लोग। मैं तो सोचा था कि मैं पिकनिक के लिए जा रहे पोटा। तो स्वरूप और मैं बोला ठीक है जाएगा। फिर उससे पहले उसके 2 दिन बाद बोला कि ब्रदर जॉनसन करके कोई है, हम लोग उसके इसमें जाएगा। तो मैं बोला ब्रदर बाद में, हम लोग पहला बड़ा दुकान में, मॉल में जाके आएगा, पोटा में जाके आएगा, बाद में सुपरमार्केट में जाएगा। Jocelyn, Yeah, Papa. is there a switch called how to remove a person from the meeting? Yes, we do have. Is there like that? That is
Yes, yes. Okay, just show me and keep me. हाँ. Okay. आगे बोल. अभी तो फर्स्ट स्टार्ट हो गया है. तो स्वरूप ने मेरे को बहुत बार ट्राई किया ब्रदर जॉनसन का मीटिंग में लेके जाने, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों सेम ऑफिस में थे और वो अभी भी है वहां पर, लेकिन हमने जो दोनों हम वो ऑफिस में जो गुजारा है, जैसे जैसे दिन गुजारे हैं भाई हमको ही पता है. बहुत बारी ऐसे होता है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, या मतलब ऐसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर हमको बहुत अच्छा टेस्टिंग टाइम्स भी होते हैं, तो अगर ब्रदर के वर्ड में अगर हम नहीं होते, वो वाइट बुक अगर हमने पढ़ा नहीं होता, तो हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती, क्योंकि शैतान बार बार लगातार हम पे वार किए जा रहा था थ्रू मेनी पीपल, थ्रू द पीपल जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके अंडर हम काम करते हैं. ऐसे बहुत बारी हुआ मुझे कि मैं उनके मुंह पे रेजिग्नेशन मार दूं, लेकिन क्या है ना कि अपने भी बाल नहीं, मेरे तो बाल थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन बाल बच्चे बोलते हैं ना साथ में. तो ऐसे बहुत बारी हुआ कि हमने बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरे हैं हम लोग वो ऑफिस में, लेकिन यीशु हमारे ईसा मसीह ही इज सो फेथफुल. भले कोई भी छोड़ दे, हमको उन्होंने नहीं छोड़ा. तो जिस वक्त तक मुझे वो काम की जरूरत थी, मुझे तब तक मैं थी वहां पे. फिर उन्होंने मुझे रिडंडेंसी किया और मैं तो खुशी खुशी आई वहां से बाहर. मैं तो हंस के स्वरूप को बोल रही थी, यार मेरा काम गया. मैं तो मजे कर रही थी. घर पे आके मस्त खाना वाना बनाया, बेटी को भी खिलाया, और मैं बड़ी खुश हुई कि मैं वहां से निकल गई. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जिस गली में जाने का नहीं, उसका एड्रेस पूछ के क्या फायदा. मतलब जो हमको बहुत ही स्ट्रेस देता है, जिनसे हम बहुत गुस्सा होते हैं, या दिल में बहुत दर्द जो हमें देते हैं, अगर हम उनसे दूर हो पाए और उनके लिए दुआ करना शुरू करें, तो मेरी जिंदगी में भी बहुत फर्क पड़ा. तो उन्होंने इसका मतलब ये हुआ जो कुछ भी मेरे दिल में नहीं चाहिए, हाँ, उस चीज को मेरे आंखों के सामने नहीं रखना है जी, मेरे दिमाग में नहीं रखना है. उसको जमा करके उसका चैप्टर उधर ही बंद करके दफना देना है, आगे कुछ बात नहीं करना है. ऐसा बोल रही है आप? नहीं, ऐसा नहीं है. मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो परेशान कर रहा है वो परेशानी दो प्रकार की है. एक तो आपने उधर से छोड़ दिया, लेकिन उसका जो याद है, जो कुछ भी आपका मेमोरीज है, उस मेमोरी में रोज आप सोचते हो, तो इसका मतलब आपने तो जगह तो छोड़ दिया, लेकिन जगह में जो लफड़ा हुआ था उसको तो छोड़ा नहीं है, वो तो अभी भी चालू है. तो मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी आपको तकलीफ दे रहा है, उसको दफनाने का कार्य आपका है. अगर आपने क्षमा कर दिया और उसको क्षमा करते हुए उसके लिए दुआ किया है, तो जो बुराई हुई थी उस बुराई का दफनाया गया, वो तो खत्म हो गया है, उसको दफना गया, तो अभी उसका कोई असर नहीं होगा. जी, जो डेड बॉडी है ना, ये जो डेड बॉडी है ना, अगर ये डेड बॉडी को दफनाएगा नहीं, तो ये डेड बॉडी को अगर ये एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो वो डेड बॉडी है ना, इतना भयंकर बास मारेगा कि आप वहां पे जी नहीं सकते. और सही है. और उसका इफेक्ट जितने लोग वहां पे जी रहे हैं सबके लिए तकलीफ है. तो इसीलिए बॉडी को लिया जाता है, 10-12 फुट गाड़ा जाता है, और फिर उसके अंदर
वो बॉडी को दफनाया जाता है। तो हाँ। बॉडी वहां पर सड़ जाता है, लेकिन उसका असर किसी को नहीं करता है, उल्टे हाँ। तो उसका वो मेन्योर बन जाता है। जी। इस तरह हमारे अंदर जो क्रोध है उसको जब तक हम दफनाएंगे नहीं प्रेम से, क्षमा से, हाँ, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो जो बॉडी मर गया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा भयंकर भास मारेगा, जिंदगी को बर्बाद करेगा, हमारा भविष्य को बर्बाद करेगा। तो आप यही बोलना चाहती है कि भले मेरी नौकरी चली गई, शायद मेरे कारण गई या किसी और के बुरा असर से हो गई, जो भी हुआ है, लेकिन अभी नहीं, हाँ, मुझे मतलब मैं जब भी मैं निकल गई तो मैं खुश थी कि मुझे कल से भी काम नहीं जाना पड़ेगा। और बहुत दुख भी हुआ कि मतलब दुनिया में इतनी बुराई, मतलब हम सोचते हैं कि लोग हाउ कैन दे प्लान सच इविल थिंग्स, नॉट देन आई जब भी हम यीशु का कलाम पढ़ते हैं कि ये लोग नहीं है, ये जो उसके पीछे शैतान है जो वो करता है। तो मुझे फिर बाद में फ्लोरिडा का, तानिया का मैंने जब भी टेस्टिमनी सुना तो मुझे उन लोगों के प्रति मुझे कोई गुस्सा नहीं है, ये शैतान का काम है। तो मैं उनके लिए दुआ करने लगी, तो मैंने उनको ब्लेस करना शुरू किया। मैं वही बोलता है ना कि अभी ये जो मुसीबत आती है, उदाहरण स्वरूप को वो जो इंसान था बगैर वजह का सता था। हाँ, मुझे भी। तो ये भी बोलता था अगला महीना तो रहेगी नहीं, क्योंकि मैं तो तेरे सबसे पहला तेरा छुट्टी करूंगा, बराबर। और उसने कोशिश भी की होगी। हाँ। तो जब नफरत होता है तो शैतान का कार्य हमेशा सफल होता है। तो मैंने मेरा बहन स्वरूप से कहा, तुम जितना नफरत करोगी उतना तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। तुमने अगर उसको क्षमा कर दिया और खुद से कहा कि ये नौकरी उसने नहीं दी है, ना कंपनी ने दी, ना बॉस ने दी है, ये नौकरी मुझे प्रभु यीशु ने दी है और उसी को अधिकार है इस नौकरी का क्या करना है। अगर मैं बुराई करती हूं तो मेरी बुराई ही उस नौकरी से मुझे हटा सकता है, लेकिन मैं अगर अच्छाई कर रही हूं और भले ही लोगों ने मुझे बुरा किया है, लेकिन मैं उसको कंपनी से बाहर निकलने के पहले उधर ही दफना देता हूं जो भी बुराई। घर पहुंचते तक है ना एकदम शांत है, दिमाग शांत है। तो बहुत बार क्या होता है डायना बहन कि किसी को अपने जिंदगी में ऐसे ऐसे बुरा एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो लोग ने, अच्छे लोग हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये बुराई हुई है। वो अच्छे लोग कब्र में 10-15 साल पहले ही पहुंच जाते हैं। और उसका असर ये है, उसका कारण ये है कि जो उनकी जो बैड मेमोरी है, उस बैड मेमोरी को वो लोग ने जिंदा रखा है, हाँ, कुछ दफनाया नहीं है। तो जिसने ये लफड़ा किया उसको तो पता भी नहीं है, वो तो अपना जिंदगी जी रहा है। लेकिन जिसको ये तकलीफ हुई थी वो उस तकलीफ को लेकर 15 साल हो गया, अभी भी उस तकलीफ को लेकर गले लगाया है और रोज मर रहा है, लेकिन उसको दफनाने के लिए तैयार नहीं। अब ये जो मैं डेड बॉडी का जो बोल रहा है, ये तो मैंने पहले कभी बोला नहीं है, अब भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये वायरस के वजह से जो लोगों का डेथ हो रहा है, मान लीजिए वो लोग डेड बॉडी का कुछ करेंगे नहीं, जिधर है उधर छोड़ दिया, उसका कोई एक्शन नहीं लेगा, तो डेथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। और सिर्फ बढ़ेगा नहीं, भयंकर मात्रा से बढ़ेगा। हाँ। तो उस जो डेड बॉडी है तो मर तो गया है, भले मेरा सगे वाला है, भले मेरा रिश्तेदार वाला है, जो भी है, लेकिन वो एक बार मर गया, उसको दफनाना तो जरूरी है या उसको जलाना जरूरी है, लेकिन उसको रख नहीं सकता है।
रखेगा तो और फैलेगा। तो उसी तरह हमारे जिंदगी में किसी ने कोई बुराई किया है, जो बैड मेमोरीज है, उसको मुझे जलाना है या दफनाना है, लेकिन मेरे अंदर रख नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं रखता हूं वही बैड मेमोरीज मुझे रोज मौत देता है। जी तो हमको जो भी चीज हमारे अंदर नहीं चाहिए उस चीज को हमारे सामने नहीं रखना है। हमको ऐसे चीज को रखना है हमारे सामने जो हमारे अंदर भी निवास कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हमको इस रूप में बनाया है कि जो कुछ भी मैं मेरे मन के सामने रखता हूँ, मेरे आंखों के सामने रखता हूँ, मेरे कानों से मैं सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और उसको हर पल मेरे सामने रख सकता हूँ। तो जो कुछ भी मेरे सामने है वो धीरे 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 मेरे अंदर पहुंच जाता है। अगर मैंने नफरत को मेरे सामने रख लिया वो तो मेरे अंदर पहुंच गया। तभी वो एक ऐसी लाश है जिसको मैंने मेरे खुद के मर्जी से अपने अंदर ले लिया है, और लिया है तो लाश है। वो लाश तो अपना काम करेगा, जरूर करेगा। तो उस लाश को जितना जल्दी आप दफना सकते हो, जला सकते हो, उतना तुम्हारा ही खुद का लाभ है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि जो भी बुराई हुआ है, जो भी नफरत हुआ है, शायद आपके वजह से हुआ है या किसी के वजह से हुआ है, लेकिन उस नफरत को आपको दफनाना है, तुरंत दफनाना है, और वो सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से वो कार्य हो सकता है। तो इसीलिए कई लोग उसको दफनाते नहीं है, उसको 15-20 साल चलाते हैं, उसमें उनका खुद का तो बुरा होता है, उनका हर जिंदगी का हर हिस्से में बुराई होती है। तो प्रभु जब बोलता है कि हमको क्षमा करना है, हमको उनको लिए प्रार्थना करना है, प्रभु हमको ये क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो मन है ना, इसको हमको डिसिप्लिन करना है। क्योंकि जब तक इसको डिसिप्लिन नहीं करेगा, ये इतना चंचल है, इतना स्पीड में भाग सकता है कि हमारा जिंदगी भर का जो कमाई है उसका पूरा एक दिन में नुकसान कर सकता है। तो हिंदी में डिसिप्लिन क्या है? व्हाट्स द वर्ड? डिसिप्लिन, डिसाइपल नहीं, डिसिप्लिन। ब्रेंडा भाई हिंदी में क्या बोलता है डिसिप्लिन? Discipline, brother, I don't know. ठहरो गूगल में देखती हूँ। Hello. या हाँ, गूगल में देखो अनुशासन, डिसिप्लिन इन उर्दू। अनुशासन, अनुशासन। अच्छा, अनुशासन। अच्छा, जो भी डिसिप्लिन करना है, लॉर्ड हमको डिसिप्लिन क्यों कराता है? क्योंकि जब हमारा मन डिसिप्लिन होता है तो जो बुरा बुरा का नफरत और जलन और ये सब जो सोच रहा था उससे हमको मुक्ति मिलती है। और ये जो नया हैबिट है, नया डिसिप्लिनिंग है, वो जन्म देता है नया हैबिट का। और ये जो नया हैबिट, एक बार हैबिट होता है तो उससे होता है नया एक्शन, नया एडिक्शन होता है। तो ये जो एडिक्शन है दो प्रकार का है, एक बुरा का है, एक अच्छाई का। तो जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं जिधर एडिक्शन होता है सबको, लेकिन अच्छाई का होता है, तो जरूर हमारा भविष्य बदलता है और उज्जवल बनाता है। तो क्या सबके जिंदगी में डिसिप्लिन होना जरूरी है? पक्का जरूरी है। उससे क्या होता है? उसी से हमारे जीवन में एक नया जन्म होता है आदतों का। और ये जो आदत हमको मिलती है उसके बाद हमारे बहुत फायदे के लिए होती है।
बुराई से बचाने के लिए होती है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो सिस्टर स्वरूप मुझे ऐसे बहुत सारी मतलब उन्होंने फिर मुझे ब्रदर जॉनसन के पास एक दो बार उसने बताया कि हम लोग पोटा जाके आ गए, फिर हम आए थे आपके पास एंड मैंने बहुत सारे रिट्रीट्स अटेंड किए, फिर बहुत कुछ सीखा। ऐसे बहुत बारी होता था कि आपका जो रिट्रीट एक वेयरहाउस में हुआ करता था करामा में, तो वहां से आने जाने के लिए मुझे बड़ी तकलीफ भी होती थी क्योंकि हमारे वहां पे तभी बस नहीं शुरू हुई थी। लेकिन कभी मुझे इतना स्ट्रेस होता था ऑफिस में, और मैं कहाँ जाऊं, मेरे दिल में या मेरे दिमाग को, मेरी रूह को ठंडक कहाँ से मिलेगी? मुझे वो वेयर विल आई गेट दैट पीस? तो एक बार ही ऐसे हुआ कि चलो यार, ये स्वरूप ने कहा था हम लोग कि यहाँ पे रिट्रीट हो रहा है, तो मैं गई वहां पे। मैं आई थी अकेले ऑफिस आवर्स के बाद, और मैंने ब्रदर का रिट्रीट सुना, और ब्रदर ने एक सवाल भी किया था जिसका जवाब मेरे पास था, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं बहुत पीछे बैठी थी और मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे पास, मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है बाइबल का, वर्ड का। और जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं, मैं भी खुश होके बस में आई और मैं बहुत रोई कि थैंक यू जीसस कि आई वेंट फॉर this 2 hours or 3 hours I spent and I felt very very good. तो मैं हर महीने जाने लगी। तो that was in 2009। और फिर वो मेरे मिसकैरेज का तो सिलसिला चालू ही था हर साल उस टाइम पे। तो मेरे साथ बस सिस्टर स्वरूप ही जानती थी कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। और लेकिन वो मुझे हमेशा कलाम सिखाती थी कि ब्रदर ने ये सिखाया, ये बोला है। देन साम 113 लास्ट वर्स जो है वो मैं बोलती गई मिसकैरेजेस होते हुए भी। जब भी ब्लीडिंग होते वक्त भी मैं 113 साम का लास्ट वर्स बोलती थी, थैंक यू लॉर्ड फॉर मेकिंग मी अ जॉयफुल मदर, because your word says that you make a barren woman a joyful mother। तो मैं बस वो बोलती गई। और बाद में ब्रदर के कलाम से ब्रदर ने बताया कि आप अगले महीने आओगे तो आप जरूर आप खुशखबरी लाओगे। तो सबसे पहले जब ये खुशखबरी मिली मेरे हस्बैंड को और मुझे, तो स्वरूप को ही पता चला कि ऐसा है। तो वो भी हमारे लिए डेजमंड और मेरे लिए हमेशा हमको तो हमारे लिए दुआ में रखती हैं। हमको आज तक स्वरूप ने नहीं छोड़ा। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब भी हम बातें नहीं करते, कलाम शेयर नहीं करते। तो bless you Swaroop, thank you for introducing me to Brother Johnson and getting me close to the word. I thank God for having you as my friend. लो ये सब Praise God. नहीं है। ब्रेंडा बहन अभी कंटिन्यू कीजिए। Just wanted to thank God, praise God for His goodness. 90 days, brother being here made a lot of changes. Brother नहीं होते हमको मालूम नहीं हम कैसे गुजरते दुबई में। मुझे घर पे हूँ मैं, बहुत ही भगवान को means I'm so grateful to God. God has made this divine appointment for us to have brother in Dubai. मैं बहुत सीखती हूँ ब्रदर से, डे एंड नाइट विदाउट फेल। किसी का भी फोन आओ, मैसेज आओ, he doesn't care about himself। ऐसा मैं नहीं देखा। तो हम कैसे बन सकते हैं ऐसा अगापे लव? आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम हिम। तो या आप लोग सब सीख रहे हैं। वी आर सो ग्रेटफुल। ये लॉकडाउन में तो हमारा जिंदगी क्या होता किसी को मालूम नहीं।
Exactly. But you're so lucky to have brother over there to see We are face to so face. blessed. Yeah, we are so blessed. That Yeah. we I'm learning so much day and night. I'm like, I'm so happy to learn, and I like Pakistani team. बहुत ही अच्छे लगते हैं. इसके लिए I wanted to come and say hi to you all. Thanks a lot. Please do be a part of us. Okay, like I am not very good. I can speak Urdu. It's not that I can't speak, but being a part of us will be, happy for you to be a part of us. So wherever we get stuck, wherever you can help us, please do, because it's the sharing of the word of the Lord. So whatever we give our testimonies, people will be happy to hear it, and by hearing it, they will, it's a thing. If you have something beautiful, right, and another person doesn't have the same thing which is so beautiful, that person will always long to have the same beautiful thing what you have. Why are you smiling so beautifully? Why are you so graceful? But they don't know the secret. Why are you so graceful? Because Jesus has filled his love in your heart. That Yes. grace is over you. That's why you're so beautiful. And a person who does not have this will always wonder, though she doesn't put makeup or she doesn't apply, but yes, she's so happy and she's so graceful. So that person will look out for the same thing what you have. Amen. And अभी So- Pearl आई है. हाँ, मैंने उसको बुलाया, और मैसेज किया. my husband, she has a fan. My husband बहुत ही उसकी हिंदी जो उर्दू बोलती है बहुत अच्छा लगता है. और Pearl जब भी वो दिन उसकी टेस्टिमनी दे रही थी और इतना रो रही थी कि मैं भी इधर बैठ के रो रही थी. और वो दिन मैंने सोचा कि मुझे इधर आना है और टेस्टिमनी देना है. मैंने ऐसा किधर भी नहीं दिया है. और जूलियस भाई आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. मुझे आया है और बहुत अच्छा लगता है. नमस्ते आप दोनों. वो भी आया है. हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के. और कंटिन्यू कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और जिंदगी बदल जाएगा सबका. गॉड ब्लेस यू ऑल. जसलिन. Thank you. Praise God. जसलिन, कंटिन्यू डियर. Sister Brenda, Jocelyn किधर है? Continue कीजिए. Jocelyn, are you there? She's not there. Okay, then Jude. Hello. I just asked her to come, please. Yeah. और कंटिन्यू कीजिए ब्रेंडा जी. Yeah. किसी का टेस्टिमनी है तो. Okay, ji. Good evening, Pearl. Are you there? Pearl? Brother Jude, she has to be unmuted. Yeah, I'm just checking where she is. She's there, but she has to be unmuted. Hello, Sister Pearl. Are you there? या सबको सलाम, नमस्ते. नमस्ते. Good evening, Brother Julius. Good Julius, evening. hi. Good evening. How are you? You know it's मतलब मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि जूलियस हमारे साथ है आज. और मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ मैं और पर्ल आज हमने ये शुरू किया है, जूलियस भाई का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. इसने हमें हर चीज में, हर जब हम एक कुछ अच्छा शुरू करते हैं तो शैतान तो पीछे पड़ता है. सही. मगर ये एक फरिश्ते की तरह पर्ल और मेरे साथ खड़ा हुआ था. जिसको जब लोग हम पर हंसते थे या हमारा मजाक उड़ाते थे, तो यही भाई मुझे बोलता था, सिस्टर you're doing something good ना, आप क्यों परेशान हो, हम है ना. So and it was always मेरा और पर्ल का हमेशा ख्वाब था कि जो मिशन में खुदावन ने हमें चुना है जिस मिशन के लिए, तो जूलियस भी हमारे साथ वही मिशन में ज्वाइन करे. और मैं खुदावन का लाखों बार, हजारों बार धन्य करूं, शुक्र करूं अदा. वो कम है कि जिस तरह से आज जूलियस हमारे साथ खड़ा हुआ है, कि लोग जो हंस रहे थे आज वो फकर करके सर उठा के बोल रहे कि वाह पर्ल, जूलियस और आपने एक मिसाल पूरी दुनिया के लिए कायम किया है. प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. मैंने कभी
सोचा नहीं था कि Okay. हर वक्त एक शुरू से एक जब मैं कैरिस्मेटिक में भी जाया करती थी तो जब मैं कपल्स को देखा करती थी सिस्टर, तो ब्रेंडा को तो ये बात पता है लेकिन मैं आप लोग से शेयर करूं तो मैं हमेशा कपल्स को देखा करती थी और मेरी दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं और मेरे शौहर जो होंगे वो इस तरीके से वर्शिप कराएंगे, खुदा का कलाम सुनाएंगे, लोगों को इस तरफ लेकर आएंगे, खुदा की राह रास्त पे लेकर आएंगे। और मैं हमेशा इस चीज की ख्वाहिशमंद ही रहती थी। जिस दिन से मैंने ये बाइबल क्लास ज्वाइन की और मैंने जूलियस के लिए वो वर्स बोलना शुरू किया, फिर मैंने जे और शामनी की जो टेस्टमनी देखी, उस चीज को पिक्चर करना शुरू कर दिया और खुदा ने मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही खुदा ने वो काम करना मेरे सामने दिखाना शुरू कर दिया। पहले अज़दवाजी जिंदगी भी अच्छी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन सब चीजें, लेकिन अब खुदा के फजल से खुदा ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि आई कैन नॉट काउंट दैट नाउ। खुदा के फजल से खुदा के कलाम के वसीला से जो बीज हम रोज लेते हैं और अपने दिलों में उस जमीन में बोते हैं, उसका फल, उसकी फसल क्या ही खूब है, उसका मजा ही अलग है। Sister Jocelyn. Yeah, praise God. Sister Jocelyn, over to you. Hello. Sister Jocelyn. Fernandez. Someone raised hand. This is the, Yeah. I'll just unmute her. You'll unmute. Yes, I'll just check. Hello. Hello, can you hear me? Yes. Yes. Hello. I just want to clarify. And the sister, this one who is at Diana, has misunderstood me. She has just said that I just want to say, these teachings are mainly for the people of Pakistan. At least I feel. Am I right? No, it's for all over the world. For all. But basically, with the Pakistani people in mind, I felt it. Am I right? No, the lady, Brenda, who started this. No. Okay. Let me continue my sentence. Since if I am wrong, I'm sorry about it. Since I felt it mostly for the people of Pakistan, I felt the translator should be from the local area because with the Urdu background. Okay, and that is why. That's why, because if it is translated from Urdu background, the people would understand better that language than the people giving translation from Hindi background. This is what brother, I felt. I understood. That is why I felt that was what my suggestion was that I'm not against anybody. I'm sorry if Sister Diana has misunderstood me. I felt only that that there is a person with very good translation in Pakistan who can easily translate with and which people would understand better, and that it would be better effective. Okay. Then a person from with non Urdu background. So I again apologize with Sister Diana if I have hurt her feeling, and if I am wrong also, please just forget what I said. If it is no, brother, no, you don't have to. We learn from each other's knowledge and sharing. So what you're saying is right. We do agree to it. We have no hard feeling even Sister Diana. It's only this that कभी-कभी ना पर्ल छोटी है, आपको मालूम है ना, पाकिस्तान में तो मेरी छोटी बच्ची है ये, तो ये कभी-कभी इसको पॉसिबल नहीं होता है, तो मुझे जो उर्दू आता है मैं उसके साथ शेयर करती हूँ. But brother, उस दिन की ये शायद उस दिन की बात है. Brother, actually sometimes I forget those sentences. I am like forgetting sentence which Sister Jocelyn is saying. So Sister Diana is continuing that sentence. So okay. we are just learning. Actually, it's we are on initial stage basically. Yeah. Brother, if you okay, have anybody, I'm sorry about giving my view. Then I'm no, sorry. No problem. No problem. You
you can. No. Sister Dinah must have felt my No, suggestion. she's not like that. That's why I I wanted to publicly apologize with Sister Dinah. I have nothing against her. I don't know her. I just came to know her over here. I have nothing against her. I'm sorry about it. Please forgive me for that, Sister Dinah. Okay. Okay? Thank you. Yes, brother. Thank you for sharing. Yeah. Bye. Yeah. Bye. Yes, is Sister Jocelyn there? Yeah, you can Sister hear me Jocelyn? now. Yes. Yes, Sister Jocelyn, let's start. Yes, you can hear me. Yeah. Yes, we can hear you. Okay, praise God. Actually, there is no Wi-Fi here. I'm on the mobile data. So in case if I get disconnected, It's again gone disconnected. Okay. Till Sister Jocelyn, praise God, till Sister Jocelyn connect होती है. सरो ऑफ पर्ल में आपको अभी आप लोग कुछ शेयरिंग कर रहे थे. तो खुदावन हमें हर हेलो पर्ल, आर यू देयर? हेलो पर्ल, हेलो. थैंक यू जी. पर्ल है. ओके. जब तक सिस्टर जोल्डीन कनेक्ट होती है, मैं आपको कुछ बताती हूँ लोगों को कि खुदावन ने मुझे कैसी बरकत और फजल दी है. ये 2002 की बात है जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी. तो मेरे शादी के 2.5 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, और जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन मेरे सेकंड बेबी का डिलीवरी डेट था. और मुझे नहीं मालूम है कि खुदावन ने किस तरह से मुझे आज इधर खड़ा किया है. मैं उसका प्यार मेरे बच्चों पर हमेशा और रहेगा. तो जिस दिन उसकी डेथ थी, मुझे हॉस्पिटल जाना था. मैंने कहा नहीं, ये मेरा आखिरी सफर है, मुझे कब्रिस्तान जाना है. मेरी बेटी थी उस वक्त 1 साल 6 महीने की. और तीसरे दिन पर फ्यूनरल के बाद जब मैं हॉस्पिटल पे गई थी, और मैं वो इंसान थी जो इंजेक्शंस, कॉकरोच वगैरह से बहुत डरती थी. तो उन्होंने मुझे एक बड़े से ऑपरेशन रूम में लिटा दिया और इंजेक्शंस है, मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा था. और जब मैं लेबर रूम में थी तो मेरे दोनों साइड पर एक औरत थी और एक माँ थी. दोनों मेरे ख्याल से माँ ही थी. तो एक का बेबी उसके पेट में ऑलरेडी डेड हो गया था और एक अबॉर्शन के लिए आए थे, और मैं उनके बीच में थी. बीच में मेरे बेटे की हार्ट बीट मिसिंग हो रहे थे. तो दोनों ने कहा कि अभी आप रोना नहीं, आप सिर्फ खुश रहो और शुक्र करो. तो उस रात को ये हुआ था कि मैंने अपने आप से मतलब चीजें कहा, नहीं अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं रोऊंगी क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है, मैं अपने आंसू नहीं बहाऊंगी. और प्रेज द लॉर्ड, 26 को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, और 30th सेम टाइम मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी अराउंड 9:30-10, और मेरा बेटा 30th को 9:30-10 के दौरान पैदा हुआ था. ना मुझे लेबर पेन, कुछ भी नहीं. और प्रेज गॉड, आज वो 18 साल का हो गया ये साल. तो मतलब उस वक्त भी खुदावन मेरे साथ था. मैं ये नहीं खुदावन को जानती थी, बस खुदावन मेरे साथ था. हेलो. उस वक्त मैं सिर्फ ये जानती थी कि हमें हर वक्त हर घड़ी खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए. हेलो पर्ल, आर यू देयर? Sister Saurabh, are you there? Yes, yeah, we are here. We can hear you. Yeah. I can't get connected to others. I'm sorry. I think they're all mute. That's why. Yeah. Pearl is. So Sister Saurabh, like दो अगर मैं खुदावन
मैं कलाम नहीं जानती थी, पर फिर भी खुदावंद मेरे साथ था। मतलब 18 साल हो गए मेरे हस्बैंड को। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, मेरे पास सिर्फ 12,500 रुपए थे अपने बेटे की डिलीवरी के लिए, और जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने सिर्फ 2,500 लिए। और खुदावन ने बहुत बहुत फजल, बहुत बरकत दी है मुझे, मेरे बच्चों को हर घड़ी। जो मैं खुदावन के कलाम को इतना नहीं जानती थी, पर खुदावन ने हर घड़ी मेरे बच्चों की हिफाजत की। हर चीज वो जो मैं नहीं अपने बच्चों को मुहैया कर सकती, जो मैं नहीं दे सकती, मेरी इतनी औकात नहीं, मैं इतनी मतलब आई कैन नॉट बाय देम द वर्ल्डली थिंग्स, बट प्रेज गॉड मेरे बच्चों के पास हर चीज है। मेरी खरीदी भी नहीं है, मेरी खरीदी भी एक चीज नहीं है, पर ऊपर वाले ने बोलते हैं कि छप्पर फाड़ के दिया है, इसी तरह मेरे बच्चों को भी दिया है। मतलब इतना किया है कि बहुत सारी मुश्किलें थी हमारी जिंदगी में। बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारी बुरी चीजें भी बोली। एक यंग बेवा जो बोलते हैं ना, कि एक यंग जब बेटी कोई अपने हस्बैंड को खोता है, उसको दुनिया जीने नहीं देती है। बहुत सारे चीज कहते हैं और बहुत सारे गालियां देते हैं, दुर्काते हैं, बहुत सारी चीज कहते हैं। बट यीशु ने मुझे ऐसे अपने पलकों पर रखा ना, कि उन चीजों से मैं आज सब इधर खड़ी हुई हूँ, कि अभी जो याद भी नहीं आता है, और अगर याद आता है दुख नहीं होता है, मगर फकर होता है कि यीशु मेरे साथ है। Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Yes, sister. Yeah, now you can hear me? Yes. Yes, sister. Okay. Sister, I think people are waiting in the Marathi session. Okay. 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 Okay, then. What is that you were learning in the last session? In the last session, we were learning from James chapter 1 onwards, and we learned about happiness and joy. Okay. And from Psalm 45 verse 1. Okay. Papa? Yes. They are waiting in the Marathi session. We'll go there now. So Paul, how are you? जूलियस भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अब आप आ रहे हैं, तो ऐसा ही जिंदगी में जब मियाँ बीवी जो साथ में आते हैं, एक ही बगीचा में वचन सुनते हैं, वही खुदा का जो वचन है हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे बच्चों का, उनका भविष्य सब कुछ बदल जाता है। आज मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा खुद का हेल्थ, सब कुछ बदल गया है उस एक ही डिसीजन से कि मुझे प्रभु यीशु के साथ उस बगीचे में जीना है, वहीं पे रहना है। और उससे मेरा कितना बुरा होने वाला था, वो सब बुरा हो रहा था, सब कुछ निकल गया। और अब मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ रोज। ये जोसलिन है, फ्लोरिडा है, ये लोग सब जो बगीचे के बाहर बैठे थे, इनको प्रभु की शब्द मिला और सच्चाई मिली, इसके लिए उनकी जिंदगी बदल गई। और जुलियस भाई आप तो जवान के पक्के हो यार, सल्यूट मारता हूँ। ये उस दिन आपने जो बोला, भले 10 मिनट के लिए मैं जरूर आऊंगा, और 10 मिनट में भी एक बीच मिल गया, अपना भविष्य बन जाता है। अब ये रात को सोने देती है कि हैरान करती है? नहीं, जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन सोने नहीं देती, बाकी अगर जो ऑफिस जाना होता है ना फिर जल्दी सो जाती है। इसका मतलब ये, जब छुट्टी नहीं है, काम से आती है, नौकरी से आती है, थक जाती है, तो तुरंत सबको सोने मिलता है। जिस दिन ऑफ है सबको थका देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी करना जरूरी है ना। अब परेशान करना जरूरी है, लेकिन परेशान ऐसा मत करो कि सामने वाला भाग जाएगा। तो मेरा वक्त समाप्त हो गया। पर बिटिया, मुझे तो अभी
उधर जाना है मराठी में। तो जोसलिन आपके साथ है? हाँ Yeah, Papa. My Wi-Fi was not there. Just now my internet came. बराबर वक्त पे आता है। ये कैसी है बिटिया जोसलिन, ठीक पढ़ाती है कि टाइम पास करती है? We enjoy her teaching. Only thing, I'm very fast for them. कोई बात नहीं, वो लोग भी फास्ट हो जाएंगे। बाय बाय। Yeah. Bye, brother. Thank you, Chris. God bless you. Thank you. God bless you, Papa. Bless you too. Okay. So you were learning on James. Yes. You were learning on seed, right? Yeah, from seed, you were learning on seed, then Sister Florida came to James chapter 1 onwards. Okay. So maybe she was explaining how you can experience joy only when you plant the seed. Exactly. The same thing she was saying. Okay. So she was explaining how I can consider it joy only when I know the end result. The same thing. Joy is based on the knowledge, On the knowledge. of the word. Yeah, of the word. Just- And joy has the beauty of joy is that you know the end result. Yes. So on that day, we were learning about the farmer. You were not there. I don't know whether you heard after that. I heard it. Okay. Okay. I we were wrote the learning- notes on it. Huh? Okay. You're a very good student, huh? You don't miss anything. What happened to Mr. Pearl? I don't know. Okay, I believe was- you can't go to Marathi section. Yes, we were learning about, sister, we were learning about the farmer. Yeah. Yeah, right. Hello? Yes. So when the farmer Yeah, is and we going had to start. Yeah. We have to start the sower and the seed, the 4 kinds of soil. Yeah, we were there. Exactly, and then we had to start with the parable of Matthew 13. chapter. You told us. Matthew 13, right? It's the Actually, same. 19 Mark 4 and Matthew 13 are the Mark 4, huh? Mark 4 to 1:9 onwards, no? It was. Yes. So when we see the farmer, But you had to make us this thing. Ask a question. should I ask questions? Yes, please. Yeah, you can. Okay. So the farmer went to sow seeds, correct? Correct. So who is the farmer? Jesus? The farmer is no, we. And in us, actually among us. Okay. Yeah, then we are the farmer. Anyone who's taking the word of God and planting in his or her heart is the farmer. Yes. Correct? So Yeah. now example, am I planting seeds? Yes. Yes. So am I a farmer now? Yes. Yes. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. I understood who's the farmer. Now what is that seed? The seed is the word of God. The seed is the word. It is not necessary. It has to be the word of God. Okay. In the parable, it's talking about the word of God. But any words are seeds, whether it is the word of God or words that is contradicting to the word of God. Is there a disturbance? Somewhere? Or only I am hearing the disturbance? No, even we are hearing from you. Okay. I think Sister Pearl's some connection. Pearl, are you there? I muted her. Okay. Okay. You can unmute and Sister. speak. Oh, she's not the co-host. Okay, what was I saying? Any word is a any seed. word. Yes. Now, when I sow seed in the ground, okay, will the soil distinguish between a good seed or bad seed? This seed is a good seed, it will give good fruits. This seed is a bad seed, it will give poison fruit. And will the soil vomit that seed out? No. No. No.
So the soil is going to give life to any seed that is being sown. Yes. Correct? In the same way, our heart is the soil. Yeah. And these are the words that we allow to be planted in our heart. Okay. So not necessary that it is the word of God. Now, just like how the soil is not going to say this is a good seed or wrong seed, whatever seed is planted, it's going to give life. Correct? Yeah. In the same way, if I'm going to allow those words that is contradicting to the word of God, my heart will not say, you know, I'm a very good person, I will not allow this seed. Or I will not give life to this seed. Yes, I can stop the seed. I can stop the seed before entering my heart. But once I allow it to enter my heart, now my heart has the ability to give life to that seed. Okay, put that scripture again, Mark chapter 4, verse 26. Mark chapter 4, verse 26. Paul, are you there? Brother Jude, can you make her the co-host? Mark chapter 4, okay. I can read it in English from my Bible because I'm using my phone, so I don't have, I can use my Urdu Bible on it. Can somebody put the scripture in the chat, please, in English? Mark chapter 4, verse 26. And 27. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, but I'll open and read. Can I read? Yeah. In Urdu? Yeah. Okay. और उसने have you कहा, opened it? Can you read? yeah, yeah, in Urdu. हाँ, पढ़े. Okay. Yeah. अरे wait. और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले, रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। जमीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती फिर बाल में पूरे दाने। 27. I've read it 27. Okay. 20. You want me to read it in English also? 28. 28. Okay. जमीन आप से आप फल लाती है, Okay. पहले So what पत्ती happens? फिर बालें। The first line. The earth brings forth fruit of herself. Yes. Correct? Yeah. That means the earth gives life to that seed. It brings that seed into manifestation. In the same way, my heart is the soil. Now, whichever seed I'm going to plant in my heart, whether it is God's word or any word that is contradicting God's word, my heart is going to give life.
and it is going to bring forth the fruit. Yeah, you can translate, sister. You understood, no? 28th first line. Oh, I muted her. Okay. Hello. Yeah. Sorry. Yeah. हाँ जी. No problem. Actually, because of Azan, I couldn't hear properly. Okay. I'll repeat again. See, the 28th Okay. verse says, "For the earth brings forth fruit of herself." The earth brings forth fruit of herself. Earth receives any seed that is planted and it gives life and it brings fruit. The earth will not distinguish between a good seed and a wrong seed. Same way, my heart is the soil, and my heart will not distinguish between a good word or the word that is contradicting to God's word. Any word that I allow to be planted in my heart is going to germinate and give life to that seed, to bring the fruit from that seed. Praise God. जिस तरीके से कि इस आयत में लिखा हुआ है कि जमीन में जो बीज बोया जाता है, ठीक है, वो जमीन उसी का फल लाती है. जमीन ये नहीं देखती कि वो बीज में चाहे गलत फल लाएगा या सही फल लाएगा, लेकिन वो उसी का फल लाती है. जमीन उस बीज का ही फल लाती है. वैसे ही मेरा दिल है. मेरा दिल एक सॉइल है, खाद, ठीक है. तो मेरा दिल जो है वो खाद है. वो ये नहीं देखता कि वो सीड गलत है या सही है, वो बीज कैसा फल लाएगा. लेकिन जब बीज मेरे दिल में मैं बोता हूँ, या जो कलाम जैसा वर्ड बोला जाएगा, उस कलाम के बीज को मैं जब से बोएंगे हम लोग, वो वैसा ही फल लाएगा जैसा वो बोया गया है. उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो अनकरप्टेबल है या कैसा बीज है. क्या सिस्टर? Okay. That's why in verse number, I think we saw in the 9th verse and the 10th verse, in the 10th verse, when Jesus was alone, the 12 and few of them went to him. Correct? And Jesus said, those who have ears, let them hear. Yeah. That means Jesus is saying, the one who's willing to hear is opening his heart to receive that seed. ठीक वैसे ही जब हम मरकज के अंजील में 10वें या 9वें बाप में 9वें आयत में देखते हैं कि खुदा के जो डिसाइपल्स थे, वो जब यीशु के पास जाते हैं, यीशु की शागिर्द जो हैं, जब यीशु के पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, तो खुदा कहता है कि जिनके सुनने वाले कान हैं वो सुने. यानी कि जिन्होंने सुनना है, जो उस बीज को बोलना चाहते हैं, वो सुने. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Now, I told that the person who's opening his heart, who's willing to hear the word of God, is allowing the word of God to be planted and receiving the seed, that is the word of God that has life, the word of God that is incorruptible. In the same way, when I'm going to allow any word that is contradicting to the word of God, now how do I allow these seeds? How do I allow these seeds to enter my heart is through my eyes, through my ears, and through my words I speak. So my eyes and my ears and the words I speak are the gateway through which I allow seeds to be planted in my heart. Yeah, Sister Paul, you can unmute and speak. Or Sister Diana? Yes, sister. Yeah. You're speaking about the 10th one, right?
the 9th verse. Those who have ears, let them hear. हाँ, And then, yeah. तो ईसा मसीह ने 9वीं आयत में ये कहा है, जिसके पास सुनने के कान है वो सुनो। तो जो लोग आए थे उनकी बातें सुनने के लिए बहुत सारी तादाद में आए थे, लेकिन थोड़े थोड़े जब भी बहुत लोग जाने के बाद जो थोड़े लोग रह गए थे, उनको भी यीशु ने ये पूछा, जिनके पास कान है वो सुने। तो जो लोग आए थे, क्या उनके पास कान नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन ऐसी बहुत बारी होता है कि हम लोग यीशु का कलाम सुनते हैं, लेकिन हम सुन के या तो भूल जाते हैं या तो उसके बारे में स्टडी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। तो यीशु कह रहे कि जिसके कान है वो सुने। तो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनमें वो भूख है यीशु का कलाम सुनने के लिए, ठीक है। और 10वीं आयत में फिर जब वो अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे, उन्होंने उससे घृणा के बारे में पूछा। तो वही लोग जो उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि इस जो तमसील है, जो आपने तमसील बताई है, तो इसका भेद हमें समझाओ। यस सिस्टर। Okay, now what Flory was teaching is about James, about joy, just like how a farmer, when he is sowing the mango seeds, is he sure that he is going to reap mangoes? Yes, because he's तो sowing the mango seed. सिस्टर फ्लोरिटा ने ये पूछा था कि जो किसान है, जब भी वो कोई बीज बोता है, अगर उसने आम के बीज बोए हैं, तो क्या वो 100% श्योर है? क्या वो 100% जानता है कि अगर मैं आम के बीज बोऊंगा तो आम ही पाऊंगा? Or will he be depressed? What if oranges come? ऐसा हो सकता है कि मतलब मैंने आज आम के बीज बोए तो मौसम्बी या ऑरेंजेस आए। जैसे ऑरेंज को हम लोग तो नारंगी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? नारंगी। हाँ हाँ। तो आम के बीज बोए तो नारंगी उगेंगे? नहीं। He knows for sure what seed he has sown. For sure, he is going to get the harvest. But with the physical eyes, he cannot see anything. तो वो जानते हैं, जो किसान होते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि अगर मैंने आम बोया है, आम का बीज बोया है, तो मैं आम ही पाऊंगा, दूसरा कुछ नहीं पाऊंगा। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, उसको नहीं पता। उसको पता है कि आम मैंने बोया है तो आम की ही फसल होगी। In the same way, when I know how the word of God works based on the principle of the seed, when I plant it in my heart, I cannot see the result, but I have the joy because now I understood the principle of a seed. I know तो वैसे ही यीशु का कलाम है, जो यीशु कहते हैं कि मुझे पता है कि जो लोग अगर जो वैसा ही यीशु का कलाम है जो कि एक बैग है बीज का, तो जो मैं मेरे दिल में बोता हूँ या बोती हूँ, वही फसल उगेगी और मुझे वही फसल मिलेगी। और मैं उस बात से मुझे खुशी मिलती है। मैं एक हिंदी में कहते हैं संतुष्ट, दिमाग में मुझे संतोष होता है, संतुष्ट हूं मैं कि मैंने आज आम के बीज बोए हैं, और या मैंने यीशु का कलाम मेरे दिल में बोया है, तो इसका फसल सच्चाई होगी
और इससे मुझे खुशी और संतुष्टि मिलती है। Praise God. Praise God. Am I right, Thank- Sister Brenda? Yeah, Yes, perfectly Sister right. Diana. Okay. Okay. So, what seeds I'm sowing in my heart, the word of God, I cannot see with my heart, with my physical eyes, but I know the end result in the beginning. So my joy is not based on what I see. My joy is based on the knowledge I have about the seed. Praise God. Paul, are you? जी जी सिस्टर जोसलिन कह रही हैं कि ठीक इसी तरीके से जब हम बीज को बोते हैं तो मेरी मतलब जॉय सिस्टर फ्लोरिडा ने जिस चीज का मीनिंग बताया था कि वो मुझे खुशी इस बात की है कि जो बीज मैं बो रहा हूँ उसकी नॉलेज मुझे ये पता है कि उसको डालने से, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर मैं आज आम का बीज बो रहा हूँ तो मुझे इस बात का पता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसमें से आम उगेंगे। तो मेरी ये नॉलेज है और इसकी वजह से मुझे खुशी है कि जो बीज मैं बोऊंगा उसके बाद मुझे उसी की फसल मिलेगी और इस चीज का मुझे पता है। ऐसे ही सिस्टर फ्लोरिडा ने एक दफा एक एग्जांपल दिया था जब ये हमें सिखा रही थी कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको ये पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसको ये पता है कि आगे मैंने कितनी मुश्किलों का सामना करना है, कितनी दर्दों का सामना करना है, पर उसकी संतोष, राइट सिस्टर डायना आपने ये वर्ड यूज किया, तो उसकी खुशी और उसकी जॉय इस बात की है कि इन 9 months के बाद मेरे गोद में एक बेबी होगा। तो ठीक उसी तरीके से जैसा मैं बीज बो रही हूँ उसकी मुझे नॉलेज है, मुझे पता है उसका, तो वैसा ही फल मुझे मिलेगा। उसका जॉय जो है वो मुझे मिलेगा जी। और वो फसल जब 9 महीने बच्चा पेट में बड़ा होता जाता है, भले ही हम उसको शायद 1 महीने में एक बार देखने मिले या कभी कभार देखने मिले, जैसे किसान है जिसने बीज बोया है उसको तुरंत ही फसल तो देखने नहीं मिलेगी। हर एक जो फसल उगने में जितना वक्त लगता है वो किसान जानता है कि इसको वक्त मिलेगा, लेकिन उसके एक मन में एक खुशी होती है कि इस टाइम के बाद मैं जरूर ये फसल देखूंगा, तो उसके मन में संतोष होता है। भले ही मुझे वो आंख से दिखाई ना दे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने ये बोया है तो मैं यही पाऊंगा। Praise God. Thank you, Jesus. For example, we will take Sister Diana's testimony. Now, usually happiness is based on what is happening around us. Today my spouse spoke to me nicely, I'm happy. Today so and so wished me on my birthday, I'm happy. Today I got a promotion, I'm happy. But if I got some problem, somebody insulted me, my day is gone. So happiness is something completely depending on the situation. I don't have control over happiness. What is happening around me and what people are going to do to me, happiness depends on the external, it depends on others, not on me. But joy is completely different. Now, when the doctor gave her the report that you have cancer, now a person who doesn't have the knowledge of the word, now the happiness is gone for a toss. Correct? But when I have the promise, the seed, that I'm already healed, I cannot see the healing, but I know the principle of the healing. So now what's happening around me is not deciding my happiness, but the knowledge I have of the seed is giving me the joy, because even though I see with my eyes I'm sick, with the eyes of faith, I know that I'm healed. Yes, God. Yes, God. इसी के लिए अगर हम हैप्पीनेस को देखें तो हैप्पीनेस वो होता है जो मुझ पे डिपेंड नहीं करता, दूसरों पे डिपेंड करता है। दूसरों पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरी आज सालगिरह है और कोई मुझे मेरा जो बहुत करीबी, जैसे मेरा हस्बैंड लगा लें या कोई भी मेरा जो करीबी है, अगर वो मुझे बर्थडे विश करना भूल जाता है तो मेरा दिन
मेरी हैप्पीनेस में कमी पेशी आ जाती है। ऐसे ही अगर मैं खुश हूँ या अगर मेरे इर्द गिर्द का कोई भी इंसान मुझे इंसल्ट कर देता है, उस हैप्पीनेस में कमी आ जाती है, तो वो मेरा दिन बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी तरीके से सिस्टर जोसेफिन बता रही हैं कि हैप्पीनेस मुझ पे डिपेंड नहीं करती है, हैप्पीनेस दूसरों पे डिपेंड करती है मेरी जिंदगी में। अब हम सिस्टर डायना की टेस्टिमनी को देखते हैं कि सिस्टर डायना की जो टेस्टिमनी थी, जब डॉक्टर्स ने उनको, सिस्टर डायना को रिपोर्ट्स दी थी और उनको बताया था कि उनको कैंसर है, तो अगर सिस्टर डायना को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, इस वर्ड की, तो उनकी हैप्पीनेस बिल्कुल चली जाती। लेकिन उनको नॉलेज थी पाक कलाम की, उसके बीज की, उनको नॉलेज थी कि मैंने बीज किस तरीके से बोना और फिर उसकी फसल किस तरीके से मेरी जिंदगी में आएगी, तो उनको पता था। और वो जॉय, वो खुशी उनकी जिंदगी में इसलिए आ गई क्योंकि उनको उस वर्ड की नॉलेज थी और उन्होंने वही किया। और अब तक वो आपके सामने चल रही हैं। उसी कैंसर में भी उन्होंने उस वर्ड पे सॉरी No, she's talking there. You can continue. ओके ठीक है, सॉरी No problem. नो प्रॉब्लम। तो ठीक उसी तरीके से सिस्टर डायना ने उस वर्ड पे गौर, उस बीमारी पे गौर नहीं किया, बल्कि उस खुशी पे गौर किया क्योंकि उनको नॉलेज थी कलाम की, और उन्होंने उस कलाम का वो बीज जो है, वो बीज उसमें बोया। और उनको इस बात की नॉलेज थी कि विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि उसका एक टाइम है, उसके बाद उनको वो फसल भी मिलेगी। तो उसी तरीके से हैप्पीनेस जो है वो दूसरों पे डिपेंड करती है, और जॉय जो है वो हम पे, मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे उसकी नॉलेज है तो उसकी खुशी मुझे आप मिलेगी। यस सिस्टर। Sister Diana, you want to add something for that? No, mostly she said everything. It's just that मैंने मेरी गवाही में दो बातें करी। एक तो मेन बात है कि मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कोई बड़ी बीमारी के बारे में सुनते हैं तो उनको बस मतलब ऐसा लगता है कि इस बीमारी इज इक्वल टू, जैसे एल्जेब्रा या ज्योमेट्री में होता है ना, बड़ी बीमारी इज इक्वल टू मौत। ठीक है, तो ये तो इसका तो विकेट उड़ने वाला है, मतलब ये तो जाने वाली है। लेकिन मैंने ऐसे मतलब मैंने सोचा ही नहीं। और दूसरा ये है कि प्रभु यीशु या ईसा मसीह का कलाम, जिसका और जिसकी द वर्ड ऑफ गॉड, जो हमें प्रभु यीशु कहते हैं कि बिंदास आप यूज करो, ये बिंदास बोलो, आपको इस बोलने का पूरा हक है, जो आप बोलोगे वही पाओगे। तो उन्होंने जब खुला बोला है मुझे मार्क में, मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 to 24, इसमें यीशु ने बोला है कि बिंदास बोलो ये माउंटेन को कि जाके धंस जा पानी में, तो मैं ये क्यों ना बोलूं, है ना। कौन बड़ा है मेरे लिए, बीमारी बड़ी है या वो बड़ा है जिसने ये धरती बनाई। तो मैंने बोला इतना छोटा बीज जब मैं मेरे मुंह से निकालती हूँ और जो डॉक्टर का रिपोर्ट बताता है उसको कैंसिल करती हूँ, उसको मैं मानती ही नहीं हूँ, भले ही मुझे दवाई लेनी पड़े, ठीक है मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ही मैं ईमान से चलती हूँ, ईमान से खुदा का कलाम बोलती हूँ कि मुझे शिफा ऑलरेडी मिल गई है। और जैसे सिस्टर जोसलिन ने बोला कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो भले ही अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं इसकी फसल जरूर मुझे मिलेगी, जो मैं बोऊंगी मैं वही पाऊंगी। तो मैं बोलती गई कि प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपने मुझे शिफा दे दी है, मेरे शरीर में, मेरे हर एक अंग में, मेरे हर एक ऑर्गन पे आपका पाक खून है। तो वही पाक खून
कैंसर के हर एक जो जर्म है, जो भी कैंसर का जो भी है, उसे मैं मानती नहीं, उसे मैं, वो शैतान को मैं अभी के अभी कमांड करती हूँ कि मेरे शरीर से, मेरे बदन से निकल जा और पानी में धंस जा, अपने रूट से, अपने जड़ से निकल जा। ये बातें मैंने खड़े होके, मैं नील डाउन होके बिना रोए मैं जोर जोर से बोलती थी। कोई तब मेरे पास, मेरे साथ में, इर्द गिर्द में कोई नहीं होता था। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, मेरी बेटी स्कूल चली गई है, मैं नील डाउन होके पाक बाइबल लेके मैं अकेले में जोर जोर से बोलती थी, यीशु आपने मुझे शिफा दे दी है, मैं डॉक्टर को के रिपोर्ट को नहीं मानती, मुझे पता है मैं एकदम ठीक हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि मैं एक दिन, मैं, आप मुझे ही ब्लेसिंग, मैं ब्लेस, किसी की जिंदगी में ब्लेसिंग बन के ये आपका ही कलाम मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगी, तो उसी के लिए मैं आज जिंदा हूँ। आमीन। Amen. Praise the Lord. So we are just like the farmer. We don't go by what we see at all. The farmer, once he sows the seed from outside, it is just like the soil. He cannot see anything. He cannot see what is happening under the soil. He cannot even see whether the root is coming, whether the seed is germinating, nothing. In the same way, when we understand the principles of the seed, now our joy is not based on what we see, but based on the knowledge. Because the farmer goes based on the knowledge and experience he has, what he learned, the principle of the seed. Just like that, we don't go by feelings and emotion, we go by the knowledge. And when we understand the principle of how the seed works, now we don't ask the question how, because we know the seed is planted. I no need to know how. It is how the seed works. Praise God. ठीक उसी तरीके से सिस्टर कह रही हैं कि हम भी किसान की मानिंद हैं, हम भी किसान की तरह हैं कि जो जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि उसने जो बीज बोया है वो वैसा ही काटेगा, उसकी फसल वैसे ही आएगी जैसा उसने बोया है, क्योंकि उसको पता है कि उसने बीज बो दिया और उसको सिर्फ और सिर्फ खाद के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, ना कि उस जगह के रूट्स दिख रहे हैं कि भाई वो रूट उग रहे हैं या अंदर से कोई फल भी आ गया हो या कुछ भी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है फार्मर को नहीं पता, किसान को नहीं पता। उसको यही पता है कि मैंने बो दिया है और उसकी नॉलेज जितनी है कि हाँ ये प्रोसीजर है और इसकी फसल आएगी, तो उसकी नॉलेज की बेस पे वो वैसे ही फसल पाता है। ठीक उसी तरीके से हम भी हैं, हमें पता है कि कलाम का बीज जो हमने बोया है, अब हम पूछते नहीं है हाउ, कैसे, क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमें नॉलेज है उस चीज की, हमें वाज़ेह है किसके थ्रू, कलाम के थ्रू, खुदा के वचनों के थ्रू हमें उन चीजों का पता है जिसकी वजह से हम बो देते हैं और फिर हम शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे सिस्टर डायना ने की। और जब हम उसका शुक्रगुजारी करते रहते हैं तो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी फसल वैसे ही आती है जैसे हम उसको बोते हैं। तो अब सिस्टर ये कहती हैं कि इट डिपेंड्स ऑन आवर नॉलेज, आवर जॉय डिपेंड्स ऑन आवर नॉलेज। हमारी जो खुशी है वो उस बीज, मतलब जो नॉलेज है हमारी, जो उस बीज के मुतालिक जो हमारी नॉलेज है वैसे ही फसल आएगी और उसी के मुतालिक हमें खुशी अता मिलेगी। Praise the Lord. And that's what we see in the 27th verse. And he should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow. He knows not how. The farmer does not know how it works. The problem with us is when we pray, we ask God, how will this happen? We should not ask how. We should only take the seed, the promise, and plant in my heart by opening my mouth and speaking it day and night and meditating on it. The word of God that is sown will surely bring the harvest. I no need to know how. Praise God.
इसी तरीके से मरकज की अंजील उसका 4 वापस की 27वीं आयत में लिखा है, और रात को सोए, ये किसान के बारे में, और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। यानी कि किसान को नहीं पता होने की जरूरत है, उसको जरूरत ही नहीं है पता होने की कि बीज ने कैसे उगना है, क्या होगा आगे, क्योंकि उसको पता है, उसकी नॉलेज है। तो वैसे ही जब हम कलाम का बीज बोते हैं, हमने सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हमने उसको मेडिटेट करना है, हमें उसको बार बार कन्फेस जब करते रहना है उस कलाम के बीज को, तो हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है। अगर हम बार बार ये सोचे, क्योंकि हमारी गलती ये होती है कि हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब कभी हम किसी मसले मसाइल में फंस जाते हैं, और फिर हम खुदा से बोलते हैं, खुदा हम कैसे इसमें से निकलेंगे, क्या होगा आगे, क्या होगा। तो क्या होगा, ये वो सवाल पूछता है, वो इंसान सवाल पूछता है जिसको नॉलेज नहीं होती। लेकिन हमें तो नॉलेज है, हमने इस पे ध्यान नहीं देना, हमने उस पे ध्यान देना है। जब हम बीज बोते हैं तो हमें पता है कि जो हमने बीज बोया है, मैं वैसी ही फसल पाऊंगी या मैं वैसा ही फसल पाऊंगा। तो हमें दिन रात उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और फिर हमें वैसे ही फसल मिलेगी जैसा हमने बोए। यस सिस्टर। Some of us, we ask how. Some of us, we will also tell God how. We will tell Lord, do this, do that. Like Abraham, Lord, how will this promise come into into manifestation? I'm so old. So he gave God a plan, a good idea. What? Through Eliezer of Damascus, I'll adopt him so he will become my descendant. Correct? So many a times we want to know how. If we don't understand how, then we want to teach God the method how to happen. काफी दफा ऐसा होता है कि हम उससे सवाल तो करते हैं खुदा से कि कैसे, और काफी दफा ऐसा होता है कि हमें पता होता है और हम खुदा को बोलते हैं कि नहीं खुदा हमें पता है, हम उसको अपने आइडियाज बता रहे होते हैं, अपने प्लान्स बता रहे होते हैं कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा और फिर ये मसला ऐसे हल हो जाएगा। ए खुदावंदा तू ऐसा कर दे मेरी जिंदगी में। ठीक उसी तरीके से जैसे इब्राहिम था, इब्राहिम को खुदा खुद उसकी औलाद देना चाहता था, पर इब्राहिम ने कहा कि नहीं, वो फलानी लौंडी मतलब उसका मैं अडॉप्ट करूंगा बेटा और फिर वो मेरी मिराज बनेगा और मैं उसको वो करूंगा। लेकिन क्या हम ऐसा बनना, मतलब क्या खुदा ऐसा चाहता है हमारी जिंदगी में हमारे साथ करना? नहीं, हमने अपने प्लान्स और अपने आइडियाज खुदा को नहीं देने। खुदा खुद बेहतर जानता है, जो सीड हमने सोया है उसी की फसल हमें मिलेगी। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, we'll go into the parable. Okay. So, the seed, the seed is the word. Okay. And the first seed fell where? Where did the first seed fall? On the You all forgot? Okay, let's see no, on the rock, पथरीली जगह पे, पथरीली जमीन पे। The first seed fell where? On the rocks. Sister Diana, not rock. The first seed fell where? Sister Branda? I forgot. I'm opening the Bible. Very good. राह के किनारे, on the road. Second one is rocks. What if the students is copying the answer? Sorry. I'm cheating. Okay, no problem. First I copied and then I'm cheating. No problem. At least now you learn. Okay. Yeah. So the first seed fell on the pathway. Correct? Yeah. So the second type of seed, where did it fall? Rocks. On the rocks. The third type of, actually it's the same seed. The third type of soil is what? Thorny. Weeds. Yes, thorny. What was the fourth kind of soil? The good soil. The good soil. Okay. Now, the disciples did not understand. So they came to Jesus. We saw last time they came to Jesus and they were asking Jesus to teach. And Jesus said, if you do not understand this parable,
you will not understand any other parable. In the same way, the Lord is teaching us, if you don't understand the principle of how the seed works, you will never understand how the word of God works in your life. ठीक, बिल्कुल, आमीन। सिस्टर जोशी बता रही हैं कि जिस तरीके से 4 जगह पे वो बीज गिरा, तो पहली जगह जो गिरा वो राह के किनारे था, दूसरी जगह जो गिरा वो पथरीली जमीन पे गिरा, तीसरी जगह जो गिरा वो झाड़ियों में गिरा, और चौथी जगह वो गिरा वो अच्छी जमीन में गिरा। तो उसी तरीके से सिस्टर जोशी बता रही हैं कि ये जो 4 बीज सेम ही है जी। बीज है वो एक ही है, सिर्फ जमीन है, जो जगह है जहाँ गिरा है वो मतलब वो अलग अलग है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा कि जो खुदा के जो यीशु के शागिर्द थे उनको ये तमसील समझ नहीं आई, तो वो यीशु के 12 शागिर्द यीशु के पास जाते हैं, और वो कुछ लोग यीशु के पास जाते हैं और वो यीशु से सवाल करते हैं कि मतलब कैसे, मतलब क्या हमें समझ नहीं आई। तो यीशु उनसे कहता है कि अगर तुम इस तमसील को नहीं समझ पाए हो तो तुम खुदा की बादशाही के उन प्रिंसिपल्स यानी कि उन रूल्स या उस सिस्टम, उस नियम को कैसे समझ पाओगे, क्योंकि ये तमसील तो एक बेस है, जैसे बिगिनिंग है, स्टार्ट है। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बेस बनाने के लिए हम उस बच्चे को मॉन्टेसरी में भेजते हैं, तो उसकी बेस बनती है। तो वैसे ही खुदा की बादशाही एक नियम पे चलती है, एक सिस्टम पे चलती है, और ये पैराबल, ये तमसील जो है ये उसका बेस है। अगर ये तुम नहीं समझ पाए हो तो आगे तुम उसकी बादशाही के प्रिंसिपल्स को, जो हमारी जिंदगी जिस पे चलती है, उसको कैसे समझ पाओगे। In the 4th verse, we saw that the seed, it fell on the pathway, and the birds came immediately and ate that seed. चौथी आयत में हम देखते हैं कि जब वो बीज जो है वो राह के किनारे गिरता है और कुछ परिंदे उसे आकर चुग ले जाते हैं, उस बीज को ले जाते हैं। Yes, sister. Now Jesus is giving the explanation in the 15th verse. Okay, in the 14th he's saying that the sower sows the word. So he's saying the seed is the word. And in the 15th verse he's saying, and these are they by the wayside where the word is sown, but when they have heard, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. जैसे हम इस यहाँ की चौथी आयत में देखते हैं कि और बोते वक्त वो यूं कुछ हुआ कि राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आके उसे चुग लिया। इसी की एक्सप्लेनेशन हम 14वीं आयत में देखते हैं कि बोने वाला कलाम बोता है, और फिर 15वीं आयत में हम देखते हैं कि जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फील फोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। इसमें ये लिखा है कि ये, जैसे पहले भी बताया कि हमारा दिल जो है वो उस सॉइल के बराबरी उसको दी गई है इस पैराबल में, इस तमसील में। तो ये उन लोगों का या इन लोगों की बात की जा रही है इस पहले वाले में कि जिनके राह के किनारे जो बीज गिरा वो परिंदे उसको चुरा के रखे थे। ये वो लोगों के लिए है जो कलाम को सुनते तो हैं और फिर शैतान उस बीज को फील फोर उस बीज को ले जाता है, उठा लेके चला जाता है उनके पास से। If you want to learn anything from the devil, learn this. When the word is spoken, immediately he comes. अगर हम शैतान से वाकई कुछ सीखना चाहते तो यही सीख लें, क्योंकि जब हम खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं और खुदा का कलाम अगर अपने लिए पढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। शैतान एकदम जैसे क्या कहते हैं सिस्टर डायना, चौकन्ना,
चौकन्ना हो जाता है, एकदम चौकन्ना हो जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं कि अब जो है ना ये तो अरे ये कैसे हो सकता है कि खुदा का कलाम पढ़ रहा है, सुन रहा है। तो वो तैयार होता है कि बस मैंने इसके पास जाना है और उस बीज को जो वो बो रहा है उसमें से उसको छीन के ले जाना है। So the seed that fell on the pathway are the people whom, when they receive the word, the devil comes quickly, immediately to steal the word. तो इसी तरीके से जो बीज राह के किनारे गिर जाता है, ये वही लोग हैं जो कलाम सुनते या बोलते तो हैं, लेकिन शैतान उनके अंदर से उस कलाम को चुरा के ले जाता है। Remember, the devil is not against you. The devil is against that seed that is planted in your heart. Praise God. हमें ये याद रखना है कि शैतान जो है वो मेरे खिलाफ नहीं है, बल्कि उस कलाम के, उस बीज के खिलाफ है जो हम अपने दिल में बो रहे हैं। Yes, if the devil is not going to steal that word, he knows the fruit of the seed is going to destroy the works of the devil. Praise God. तो उसको, शैतान को ये बात पता है कि अगर वो बीज हमारे अंदर से वो नहीं चुराएगा तो वो बीज जो है वो शैतान के उन मंसूबों को तोड़ के विनाश कर देगा, खत्म कर देगा। Okay, so the devil comes. Sister Jocelyn, can you back it up with one example, like for when we're listening to the word of God in the church, or immediately our minds are wandering somewhere else? Yeah. I have not yet. I've just started. I'm going to ask some questions. Okay. I've just started it. I'm not going to finish the first soil just like that. Yes, exactly. Okay. Now, my question is, if the devil is going to come and steal the seeds that is sown, why should I preach? Anyhow, the devil is going to come and steal. Sister Pearl. Sister Jocelyn सवाल पूछ रही है। No, first you answer me. जी. Is the devil going to come and steal the word that is sown? No. Read the scripture. Sorry. Read that verse again. The 15. Yeah. In English or Urdu? In Urdu or in English. Okay, in English. Okay. The one by the road are the ones where the word is sown, and when the word is sown, and when they have heard, immediately Satan comes and takes away the word which has been sown in them. Now, is the word sown in your heart? Yes. So will the devil come immediately to steal it? According to that scripture? Yeah. So what is the use of me sowing the seed if the devil is going to come and steal it? You ask the question now. Okay. Yeah. Right. Good one, sister. अच्छा, सिस्टर पूछ रही है कि जब हम 15वीं आयत पढ़ते हैं, और से सुनिएगा, जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फीलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। राइट ब्रेंडा, यू लिसनिंग? हाँ, तो सिस्टर ने सवाल पूछा है कि क्या शैतान आके ये बीज ले जाएगा? क्या शैतान आके ये कलाम ले जाएगा? सिस्टर ब्रेंडा, सिस्टर डायना। हाँ, कलाम में तो ये लिखा हुआ है कि तो वो लेकर जाएगा। हाँ या ना? Sorry sister, what's the question? क्वेश्चन ये है कि 15वीं आयत में ये लिखा है कि जो राह के किनारे जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान फीलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ये 15वीं आयत में लिखा हुआ है। तो क्या शैतान कलाम को हमारे अंदर से ले जाएगा अगर हम कमजोर हैं? She's saying if we are not strong.
No, you give me any answer, but give the answer from the scripture. Okay. कलाम में से जवाब दो. Otherwise, how will I know what you're saying is right or wrong? हाँ, exactly. Okay. According to verse 15, he has taken away the seed. Yeah. So is he going to take the seed from everyone? No. Not from He's going everyone. to take it only from the person's heart who's the pathway. Correct? Yeah. So who's that person? From whom will he steal the seed? From those who have ears, but they don't hear. Sister Diana, I'm going to record and send it to Papa. Sister Jocelyn, Yeah. the one who are like जो बीज जिनके लिए बीज मतलब how to explain, I don't know, मतलब Those who are in the participants, send me a private message. Let me see what are the answers. Not public or private. अरे बोल तेरा और मेरा टेस्ट चल रहा है. सिस्टर डायना, आप एक्सप्लेन करें जोस्लिन को, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. But give me from the scripture. Yeah. No, according to 15, he has taken away the seed. Yeah, but my question is, can he take it from everyone? No. If not from everyone, from whom can he take? जिनके लिए बीज राह के किनारे, जो बीज. सिस्टर डायना ने क्या जवाब दिया था? सिस्टर डायना, you said those who can, who has ears. नहीं. But that is not applicable to this particular 415. That's the wrong answer. Sister Brenda. Wrong answer. That's wrong answer. जो सुनते नहीं है, जो कलाम चल रहा होता है, लेकिन वो बीज राह के किनारे गिर रहा होता है, उनके ऊपर से गिर रहा होता है. How explain her? Sister Diana, explain Sister Jocelyn. Can I give a clue where the answer is? Yes. If I give the clue, you all might find. Yeah, sister, you can give the clue. It's in the same parable is in Matthew 13, right? The answer is there. Oh, you could have told us first. I want to check, no, first of all. Okay. Yes, sister, you can. This is how we learn. Matthew 13. Yeah, chapter 13. Nobody has sent me private message. Huh? I wonder whether they are listening or they don't know the answer. Actually, they are waiting for the answer. Please give me some wrong answer. No problem. Oh. Somebody is saying, oh, who's that? Paul. She found it. Hold on. Matthew. Verse 5. You sent Verse 5. private message? Okay, sister. Wait. Matthew 13 verse 5. Huh? No. So? That also is wrong answer. No, I am asking, not telling. Okay. What is your clue? Half clue you have given. Okay. If I give the verse number, then I have almost gave the answer. Should I give the verse number? Yes. Sister, for today, give the verse number. Okay, first one I'm giving, next time no. No clue. Okay. Verse 19. जब कोई बादशाह या कलाम Okay. The one who doesn't understand. Read it. Yes. In English? Yes. When anyone hears the word of the kingdom and doesn't understand it, the evil one comes and snatches away that which has been sown in his heart. This is what... Yeah, remember the devil cannot steal that seed from your heart when you understand. Praise God, yes. The devil can only steal it when you do not understand what you heard. Okay, you translate that. Okay. Diana, you got the answer? Yes. Brenda, you got the answer? I just heard you. I'm finding which scripture it is in. 19. Matthew 13, verse 19. हमेशा याद रखें, सिस्टर जोसेफिन कह रही है. You can read in Urdu. Okay. जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं,
तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। सिस्टर जोसलीन बता रही हैं कि इसमें लिखा है कि जो पथरीली जो राह के किनारे गिरा हुआ बीज था, ये वो लोग हैं जो कलाम सुनते तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती। तो ये वही लोग हैं जो सुनते तो हैं लेकिन फिर शैतान आके उनसे वो बीज छीन के ले जाता है क्योंकि उनको कलाम की समझ नहीं आती है। Sister, I was like that before. Okay. For the sake of reading, just like Sister Diana gave an example, when I go to the church and when the reading is going on, I just hear. And when I come back, when I ask you, what did you hear? I don't remember. Now, the moment you said, I don't remember, means what? It is being stolen. Yeah. Correct? Yes. For example, there is a house that is locked and you went for a tour. That family has gone for the tour. When they came back, they could see that all the valuable is missing. Now, did he see the thief? No. No, but can you see that the thief came? Yeah. No, you cannot see that the thief came, but everything is gone. In the same way, if I ask you, what did you read? I read something in Matthew, you know, but I don't remember. Now, is it an evidence the thief has come? Yes. But can the thief come and steal the word from everyone? No. Not from everyone. Only the one who has not understood. Understood. Yes. Bilkul. Yeah, can translate. Okay. Sister Josephine बता रही हैं कि Sister Josephine is not saying, the word of God is saying. Okay. I'm sorry. No problem. Yeah. खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो राह के किनारे जो बीज गिरा होता है, राह के किनारे, वो वैसे ही है जैसे हम चर्च में जाते हैं और चर्च में जाके खुदा का कलाम जैसे जो प्रीच किया जाता है, जब फादर्स खुदा का कलाम दे रहे होते हैं और हम सुनते तो हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं और हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें पूछते हैं कि आज का कलाम क्या था, सुना, मतलब हमें भी बताएं खुदा का कलाम क्या था, और हम लोग बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। हम कहते हैं हाँ हुआ तो था, अच्छा मुझे याद नहीं है। तो वो वैसे ही होता है कि जब हमें समझ नहीं आती कलाम की तो शैतान आता है और वो बीज हमसे, वो कलाम हमसे छीन कर लेकर चला जाता है। ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम्पल है कि जब एक फैमिली किसी बाहर ट्रिप के लिए जाती है, कहीं बाहर अगर घूमने के लिए जाते हैं, तो पीछे चोर आता है और सब महंगी चीजें जो है वो घर से गायब हो जाती हैं। तो जब चीजें गायब हो जाती हैं तो उस फैमिली को वो चीजें देख के उनको ये होता है कि यार चोर आया था और ये सब चीजें लेकर चला गया, लेकिन चोर क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देख सकते थे। तो उसी तरीके से खुदा का कलाम जब प्रीच किया जाता है चर्च में, जब हम होते हैं मासेस में, तो हम उस शैतान को या उस चोर को देखते तो नहीं है जो कलाम लेके जाता है, पर चूंकि हमें उस कलाम की समझ नहीं आई तो वो उसका एक एविडेंस है कि शैतान आया और वो उस कलाम के बीच को हमसे चुरा के लेके गया। और उसी तरीके से वो फैमिली जो अपनी महंगी महंगी चीजें जब वो देखते हैं कि वो घर से गायब होती हैं, तो वो एक एविडेंस होता है कि चोर आया और वो लेकर चला गया। यस सिस्टर। The problem with us is many of us, we read the Bible for the sake of reading. You know, every day I read a chapter. Correct? And we think because I read the Bible every day, I read the Bible every day, God loves me. Now I did my duty. But the scripture says, it is as good as there is no difference between you reading and you not reading. You going and listening and not listening. There's no difference. Because if you don't understand, it is going to be stolen. The thief is going to come and he is going to steal it for sure. If you don't understand what you are reading, then there is no use of you reading the Bible without understanding. ये हमारे लिए बहुत आसान होता है कि मैं ये कह दूं कि मैं रोज बाइबल का एक चैप्टर पढ़ती हूँ, लेकिन अगर वो मैं उसको रोज सिर्फ पढ़ लूं, क्योंकि हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करते हैं, समझते नहीं है
क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती है। तो इट इज रिटन इन द बाइबल के, बाइबल कलाम में खुद भी लिखा है कि कोई फायदा नहीं है तुम्हारा पढ़ना या ना पढ़ना, वो एक बराबर है। अगर मैं उसको पढ़ रही हूँ और मैं उसको समझ नहीं रही तो वो मेरे लिए ना पढ़ने के बराबर है। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर मैं कलाम को रोज पढ़ रही हूँ उस चैप्टर को, तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं अगर मैं उसको समझूं नहीं। तो उसी तरीके से I'm not telling you don't read the Bible. You have to read, but what is more important is to get understanding. Exactly. पढ़ना मना नहीं है, मतलब किसी ने मना नहीं किया, कोई ये नहीं कह रहा कि आप ना पढ़ें बाइबल, बाइबल पढ़नी चाहिए हमें रोज। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है उसको पढ़ना और उसको समझना। समझना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर मैं उसको सिर्फ पढ़ती रहूं और समझूं नहीं तो मेरे लिए पढ़ना या ना पढ़ना एक बराबर है। तो पढ़ के उसको समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सिस्टर। Okay, now what is the meaning of the word understand? अब सबसे पहले मतलब जो सवाल है वो ये है कि समझना, समझने का क्या मतलब है? Have we learned this earlier? Did Papa teach? Surely you would have taken. What is understanding? No? That time we were the seeds on the pathway, maybe. Good example. Sister Brenda, what is the meaning of the word understand? Sister Brenda actually is not there, right? Yeah, because I think so there is a network issue. Okay. The meaning of the word understand, you can write down. Okay, sister. The meaning of the word understand is to have practical working knowledge. Understand means to have practical working knowledge. To have practical word knowledge. Working knowledge. Not working knowledge. Okay, sister. काम करने वाला. See, I can see, you know, somebody swimming, or I can see how they are swimming. That doesn't mean that I know how to swim. Correct? Correct. In the same way, I can hear the word. I can even memorize the word and say it by heart, but doesn't mean that I know how it works. Until and unless I practice, I will never get the practical working knowledge of the word. Correct. Sister Diana, you can translate by the time she writes. Okay. जो वर्ड जो कलाम है, हमें कैसे पता कि हम कलाम को समझ पाए हैं कि नहीं, कि हमने उसको कलाम को समझा है कि नहीं। समझ की क्या समझ है, मतलब हमारे लिए समझ जो है इसका क्या मतलब है। तो सिस्टर ने इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो है जो टू हैव प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के या बीच के बाहर बैठ के औरों को स्विमिंग करते देख, गोता लगाते देख, अगर हम देखते हैं कि वो तो बड़े मजे से गोते खा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खुद को स्विमिंग आती है, मैं खुद गोते लगा सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। तो मुझे तो खुद पानी में उतरना पड़ेगा, पानी की गहराई को समझना पड़ेगा, मुझे ये समझना पड़ेगा कि पानी के अंदर मैं सांस ले पा रही हूँ कि नहीं। तो उसकी तो मुझे कोई समझ ही नहीं है। ठीक है, तो समझ का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज, यानी मुझे उसकी गहराई में जाकर
उसको जहन में बिठाना पड़ेगा, उसे कहते हैं समझ। Am I right, Sister Paul? Yes, जी. Yeah, you can also add. जी sister, नहीं, she has completed. Okay, so practical working knowledge. Now, how much I read is not important. How much I practice and how much I understood how it works. That's why how much scripture a person can know 100 scripture by heart, but his life will be the same. But you can see another person who can take just one scripture, understands it, applies it, and that person even can see cancer disappearing. That person can see tumors disappearing. That person can, learn that one scripture how to come out of his problem when he understands and applies it. That's why how much I know I can have 100 when I don't have the understanding. Now that seed is being stolen by the enemy. But even if I know one word, even if I know one scripture, what I understood when I apply it, now the devil has no power to steal what's planted when I understand. सिस्टर मतलब सिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि एक जो बीज है, जैसे हम कलाम पढ़ते हैं और अगर हम उसको सिर्फ पढ़ें बल्कि उसको प्रैक्टिस ना करें, तो जैसे हमने अभी सीखा कि प्रैक्टिस करना, उसको बोलना और उसको प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको सिर्फ याद करके अपने अंदर बैठे नहीं रहना। तो अब एक इंसान है, जैसे उसको मतलब काफी सारे वर्सेस उसको याद है बाय हार्ट, काफी सारे कलाम उसको पता है, उसको याद है, लेकिन एक दूसरा इंसान जिसको सिर्फ एक वर्स याद हो, जिसको सिर्फ एक कलाम की आयत याद हो और वो उसको इस्तेमाल करे, और लोगों में से कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो रही है, लोगों में से ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां खत्म हो रही है, लोग शिफा पा रहे हैं, लोग तंदुरुस्ती पा रहे हैं, लोग अपने बीमारियों से जब निजात पाते हैं, अपने मुश्किल हालात से जब निजात पा रहे हैं, तो वो एक आयत वाला जो इंसान है, जो उसको मुंह से कह भी रहा है और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कलाम के उस बीज को लेके वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो मैनिफेस्टेशन देखता है, वो उसका जो वर्किंग, जैसे एक हम मशीन है, जैसे एक चाबी है, अगर मैं उसको घुमाऊं नहीं और वो चलेगी तो मैं उसको देखूंगा। तो वैसे ही अगर मैं सिर्फ पेट्रोल भरवा लूं गाड़ी में और उसको लेके बैठा रहूं और चाबी ना घुमाऊं और बोलूं कि भाई गाड़ी को खुद स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से मैंने उस कलाम के बीज को, अगर मैं उसको सिर्फ अपने अंदर बाय हार्ट याद करती रहूं और उसको अपने मुंह से बोलूं ना, या उसको प्रैक्टिकल में ना लाऊं, तो फिर मेरे लिए वो फायदा नहीं है। तो फिर शैतान आके वो उस कलाम के बीज को मेरे अंदर से ले जाएगा। अगर मैं उसको अपने मुंह से बोलूंगी और उसको प्रैक्टिकल करूंगी और जब ये सब काम होंगे, तो शैतान के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो आके मेरे अंदर से वो बीज लेकर जाए। ये सिस्टर I just want to add, जैसे दो लोग हैं, एक आदमी है जिसको एक ही आयत पता है, और सिस्टर पर्ल ने जैसे कहा कि वो एक ही कलाम को समझ पाया है, उसने ठीक तरह से समझ लिया है, इसीलिए वो अपने मुंह से वो बीज को बार बार दोहराता है, क्योंकि उसको वो समझ आए। और दूसरा एक आदमी है जिसको पूरा का पूरा कलाम याद हो गया है, लेकिन वो कलाम को समझ नहीं पाए, तो उसका क्या फायदा होगा कि आप बहुत सारे कलाम मतलब स्क्रिप्चर्स को जाने लेकिन उसको समझे ना। अगर आप उसको समझ नहीं पाए तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो उससे अच्छा है कि आप एक कलाम को जो आप जान गए हैं, आप समझ गए हैं, उसे आप जैसे उस आदमी को कैंसर से, जैसे मतलब कोई भी बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, या कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे ऑफिस में प्रॉब्लम है, वो वही कलाम को बार बार दोहरा के वो अपने प्रॉब्लम से निजात पाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक और आदमी है जिसको सारा का सारा बाइबल पता होगा,
सारे के सारे स्क्रिप्चर्स बताऊंगी, लेकिन उसकी बस जानकारी है, समझदारी नहीं है, तो वैसी समझदारी का क्या फायदा? ये सिस्टम। Okay, I'll give an example. Now, when the Zoom session started, okay, many of them, you know, they were panicking. They were like, no, I don't know to use this mobile. I'm not, I don't know about the technology. I don't know. And they're seeing the WhatsApp messages coming. People are asking them to join in Zoom. And there was a lot of fear. And many of them were going and asking the children help, who are the youth at the home or the children, they were asking, can you help me? And they had a lot of fear even to touch anywhere, because they don't know what will come, how the audio will come, if any message come or video come. But now what happened is, in the beginning, what you had fear and what you were panicking, now every day you're using it, and now you got the practical working knowledge, that now you became like an expert. You know that how to open it, you know how to connect, you know how to see the chat, now you know how to put the chat, you know how to read the chat. Correct? Correct. So how did you get this practical working knowledge? When you started to apply it, in the beginning it looked like you don't know anything, but every day when you started to spend time with it, and when you started to practice it, now you became an expert in that area. So that's how understand. That is what is understanding. Understanding means having knowledge that I understand in such a way that I can practically apply it. Practical working knowledge. हाँ, सिस्टर जॉसलिन ये कह रही है कि पहले जब भी जूम जैसे एप्लीकेशन आया था, बहुत सारे लोग इतनी तादाद में आए थे जिनको जूम की कोई समझ नहीं थी, तो वो इतने मतलब डरे हुए थे कि पता नहीं मैं कौन सा बटन दबाऊं, कौन सा स्क्रीन आ जाएगा, मैं अगर गलती से मतलब क्या वो मेरा कोई इंफॉर्मेशन ले लेगा। अपने बच्चों की तरफ भाग रहे थे, मैं कौन सा बटन दबाऊं, मैं कौन सा स्क्रीन आ जाएगा, इतना डर था उन लोगों में। लेकिन अभी 2-2.5 महीने से जो ये लोग बहुत सारे चीजों के लिए जूम जैसे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अभी बहुत आसानी से लॉगिन होते हैं, लॉगिन करते हैं और बहुत आसानी से अपने रिकॉर्डिंग्स करते हैं, अपने मीटिंग्स करते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये 2-2.5 महीने जो हम रोज के रोज लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, और अभी हमको दिखाई दे रहा है कि चैट मैसेज का ये विंडो है, ये टाइप करेंगे तो ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। इसको कहते हैं कि जानकारी की समझदारी। जो हमें जानकारी मिली, हमने ये 2-2.5 महीने हमने अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हमें इसकी पूरी तरह से समझदारी मिल गई है कि इस एप्लीकेशन को हम इस तरह से यूज करते हैं। तो यही सिस्टर जॉसलिन बता रही है कि खुदा का कलाम भी ऐसा ही है। ये सिस्टर, So, the problem is not with the seed. The seed is the incorruptible seed. तो सिस्टर वही है, ये मुश्किल या कोई भी प्रॉब्लम ये बीज में नहीं है, क्योंकि बीज तो जो खुदा का कलाम है वो इनकरप्टेबल है। जैसे उसमें कोई बुराई, कोई झूठ नहीं है, वह हमेशा सच्चा है, सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। मुश्किल या प्रॉब्लम हम में है। That's why Jesus is giving the parable to teach. The problem is not with the seed. If you're not seeing the manifestation, the problem is with the heart. And the first reason he's saying is the heart where the seed fell on the pathway. तो यस, तो मुश्किल ये है
कि मुश्किल जो प्रभु यीशु के कलाम में नहीं है, बल्कि वो जो बीज जो वो किसान लेके जा रहा था, बीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि वह राह के किनारे गिर गया। तो वो हम जैसे हमारा दिल है, जिसको हमने जो कलाम को नहीं समझा, बस सुन के भूल गए, मतलब शैतान आया, बीज लेके उड़ गया। That's Praise the why Lord. the scripture says, the believer shall lay hand on the sick. I can read it as a theory, but only when I go and practice it, when I go and lay hand by faith, now the Holy Spirit will start teaching us how it works. तो इससे हम ये सीखते हैं कि जो बीज हमने बोया है, जैसे वो हम हमारे हृदय में या हमारे मन में जब तक हमें उसकी समझ नहीं मिलती, तब तक हम लोग वो हमें हमारा काम ये है कि हम शैतान को, इस बीज को हमारे मन से, हमारे हृदय से ना निकाले। हमें हमेशा जो बीज हम बोते हैं, उसे हमें 24 घंटे चौकन्ना रहना है कि हमें जब तक वो बीज की समझ नहीं आए, तब तक हमें उसको दोहराते रहना है, उसकी समझ के पीछे भागना है। अगर हमें कुछ समझा नहीं, तो हमें वो आदमी के पास जाके या चर्च में जाके पूछना है कि इसका क्या मतलब है, और हमें उस कलाम को दोहराते रहना है। Yes, sister. That's why we are not supposed to read the Bible, but we are supposed to study the Bible. इसलिए हमें कलाम को बस पढ़ना नहीं है, उसे हमें सीखना है, समझना है। There's a big difference between reading and studying. इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, जो हम सिर्फ पढ़ते हैं या जिसको हम समझते हैं। If we are the people Sister, who are it's only you and me. No, they are there, but the video is off. Okay. Okay, totally 15 are there. Okay, no problem. It doesn't matter. Yeah. So, okay. What was I saying? Yeah, there is a big difference between reading and studying. If I'm going to only read, then I come under the first category, where the thief, I allow the thief to steal that seed that I plant in my heart. हाँ, जैसे इसमें सिस्टर कह रही है करके पढ़ाई में और सिर्फ ऐसे हम अगर कलाम को बस पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, पढ़ने में और समझने में बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो हमारा काम ये है कि हम खाली ना के सिर्फ पढ़ें, बस कलाम को समझें भी। Children who go to school, do they read or they study? बच्चे जो स्कूल जाते हैं, क्या वो सिर्फ पढ़ाई करने जाते हैं या समझने भी जाते हैं? What if they only read and tell mommy, you know what, I can't remember? ऐसा कभी होता है कि बच्चे ऐसा, मतलब कभी ऐसे तो बहुत बार हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हमेशा ही हो कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, ठीक है, और घर आते ही हम उनको जो भी रोज पूछते हैं कि आज तुमने क्या सीखा, अगर वो रोज कहें कि मुझे तो याद ही नहीं, अगर रोज कहें कि मुझे तो याद ही नहीं कि मैं टीचर ने क्या कहा और मैंने क्या सीखा, मुझे तो याद ही नहीं टीचर ने क्या बोला, तो उसका क्या फायदा? Correct. So for the child to study, for reading you don't need much time, but for studying you have to take time to understand, to learn, and to recall. If I'm not able to recall, the child has to study in such a way that the child can recall what the child has studied. The same way, when I study the Bible, I have to study in such a way that I have to recall it.
ओके, तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो जो भी जानकारी उनको मिलती है, जो भी टीचर उनको पढ़ाती है, अगर वो रोज आके कहे कि मुझे याद ही नहीं है कि टीचर ने क्या कहा, इसका मतलब उसने ध्यान लगा के सुना ही नहीं टीचर ने क्या कहा, उसका ध्यान कहीं और था। तो हम भी वैसे ही होंगे जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा, लेकिन हमने उस पे ध्यान नहीं दिया, हमने उसे समझा नहीं। तो जैसे बच्चे उसको कलाम जैसे टीचर ने जो पढ़ाया उसको लिखा बुक में और उसको उस तरह से समझा जैसे उसको याद, कल अगर कोई पूछे भी तो भी उसको याद करने लायक वो वैसे पढ़ाई करे, वैसे वो टीचर ने जो सिखाया उस लेसन को वो समझे, उस तरह उसको याद रखने की कोई तरकीबें करनी पड़ेंगी। उसी तरह हम हैं कि कल अगर कोई हमको, आज हमने जो कलाम में पढ़ा है, कल अगर सिस्टर जोसली ने हमें पूछा कि कल तुमने जो पढ़ा वो याद है कि नहीं, कल हमारी वापस टेस्ट होगी और कल हमें वो टेस्ट पे खरा उतरना है, नहीं तो हम वो बीज कहलाएंगे जो बस राह पे गिरा। Thanks a lot. Yes, sister. So, are we coming in the first category? क्या हम वो पहले वो है जिसपे बीज, क्या हम वो राह बनना चाहेंगे जिसपे बीज आके बस चिड़िया आके चुग गई, या क्या हम वो बीज हैं जो शैतान बस चुरा के ले गया? I don't know. You have to check. That's why Jesus is teaching. Check your heart condition. The problem is not with the seed. The problem is with the heart. तो ये हमें सवाल अपने आप से करना है कि क्या हम उस तरह की जमीन है, उस तरह की जमीन है जहाँ पे बस वो बीज आके गिरी? हमें ये खुद से सवाल करना है। In that 19th, Matthew 13:19, it is one line, those who, the devil comes and steals the word who has not understood. But actually, if you see the meaning of the word understood, the word understood is not a passive word, it's an active word. When I believe, even the word believe means it's not like just I say I believe. No, the definition of the word believe means my action corresponding to the message. And I can never understand if I don't act on what I heard. Yes, sister. My action corresponding to the word. To the message I heard. Believe, the meaning of the word believe is, see sister, why I'm not saying action corresponding to the word, because the message can be from God or it can be from in the world. What I believe, how will I know what I believe? My action shows what I believe. That's why the meaning of the word believe, the definition of the word believe is my action corresponding to the message. To the message. So my action shows what I believe. The same way when I say understand means I have practical working knowledge. So if I have practical working knowledge, that means there is an action that is involved, not just hearing. That's why Jesus did not say only hear, but he said, I have to be the doer. तो मैथ्यू चैप्टर 13 और उसका 19वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 19वीं आयत में लिखा है कि जो बीज जो राह पे गिरी, जो वो बीज है जो शैतान आकर लेके जाता है, वो है जो हम में से लोग हैं जिसने वो कलाम को समझा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम
हम उसको बिलीव नहीं करते, जैसे उस पे हम लोग ईमान नहीं रखते। ठीक है, तो बिलीव का क्या मतलब है? अभी मैं कहती हूँ कि हाँ मैं एक्सक्यूज मी, Praise God. Thank you, Jesus. Sister Pearl? Yeah, she's come. No. Sister Pearl? Yeah, I'll finish with this now. Okay, Yes, last. sister. Yeah, I understand. Yeah. Can you translate? Yes, sister. Did you hear? Yes, sister. बिलीव जो है वो उस चीज से आता है कि देखिए वर्ड तो हम वो सीखते हैं, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो बाइबल से हो, लेकिन बिलीव का मतलब वो है। सिस्टर, कैन यू रिपीट द मीनिंग ऑफ दैट बिलीव? Believe, okay, I thought you know the definition. Okay, believe means action, my action corresponding to the message. Okay, believe का यानी कि बिलीव का मतलब ये है कि मेरे एक्शंस जो है वो उस मैसेज पे किस तरीके से मतलब for example, if there is fire in a room, okay, and somebody is saying fire, if you believe, will you run? Yes. If you're sitting, that means you did not believe. Correct? So your action should correspond to the message. It's not that I believe. No. If you say, open your mouth and say believe, your action will show me what you're believing. Exactly. So believe means my action corresponding to the message. Somebody can say, I'm healed, but yet sitting there. Why? That person is only saying I'm healed, but never believed I'm healed. If that person really believed I'm healed, that person will not sit. That person will act on what he believed. So believe means action corresponding to the message. Praise God. अब एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं एक कमरे में बैठी हूँ और कोई मुझे आके कहता है कि इस कमरे में आग लग गई है, और मैं तुरंत उस वक्त उठ के भागने लगती हूँ कि कहीं वो आग मुझे जला ना दे, तो वो मेरा बिलीव है, राइट? मैं उस अल्फाज पे, उन अल्फाजों पे मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, रिएक्ट इन अ सेंस कि मैं एकदम खड़ी हुई और एकदम भागने लगी, तो मैं उस वर्ड पे, उस सेंटेंस पे बिलीव करती हूँ। अगर मैं सिर्फ बैठी रहूं और आग लगी हुई और कोई मुझे कह रहा है कि आग लगी है, तो और मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ, तो इसका मतलब है मैंने उस सेंटेंस पे बिलीव नहीं किया, उस वर्ड पे मैंने बिलीव नहीं किया, राइट? Yes, sister. Yes. Praise the Lord. Praise God. So in the same way, when the scripture says understand means to have practical working knowledge. Praise God. It's not a passive word, it's an active word. Okay. जब कलाम में लिखा है कि sorry sister, what was the sentence? Understand means practical working knowledge. I think you wrote it down. Yes, earlier. I wrote it down. अंडरस्टैंड का मतलब है प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज, यानी कि हमें जब कितनी दफा कलाम में ये लिखा हुआ आया है कि समझो, जैसे सिस्टर पहले से भी हमें सिखा रही थी कि समझने का मतलब क्या है। अब समझने का मतलब ये है कि मैं उसको कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, वर्किंग नॉलेज, उसकी उस नॉलेज के मुताबिक या उस चीज के मुताबिक हमें उसको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। Okay, so that's what we saw in the first kind of soil, the pathway, where the seed falls on the pathway. And that's why for my heart to not to be as a pathway, I have to understand. For me to understand, I have to practice. I have to put it in action. And that is the time I get the understanding how it works. I know how it practically works. And now, when I begin to understand, the devil cannot steal the seed that is planted in my heart. Praise God, praise God. Sister, ये कह रही हैं कि ठीक वैसे ही जो आज हमने सीखा कि जो
हमारे दिल की जो जमीन, मतलब जो जमीन है, जो खाद है, उसको वैसा ना बनाने के लिए, जो राह के किनारे है उसको हम वैसा ना बनाने के लिए हमें उस कलाम को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, यानी कि उसको अपने अपने उस कलाम को प्रैक्टिकल में लेकर आना है, वर्किंग में लेकर आना है, ताकि जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं उसका जो काम है वो शुरू हो जाता है, एंड फिर हम उसकी फसल भी देखते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हमें वैसा नहीं बनना जैसा ये इस कलाम में लिखा, जैसा इस आयत में लिखा है कि जो राह के किनारे गिरा, जो बीज राह के किनारे गिरा, वो चिड़िया आई और उस बीज को चुग के ले गई। तो अगर हम इसके मुताबिक, अगर हम अपने आप को इसके मुताबिक करना चाह रहे, तो हमें उस कलाम को समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, अपने मुंह से प्रैक्टिकल में लाना है। और जब हम अपने मुंह से प्रैक्टिकल में लाते हैं तो उसका काम शुरू हो जाता है अपनी नॉलेज के मुताबिक। यस सिस्टर। Okay, praise the Lord. Thank you, Praise God. Jesus. Thank you, I think for today it's okay now. Yeah. Yeah. Okay, revise and come. Hmm. So it's very important for us to understand, to practice, not how much I know, but how much I practice. Practice. Yes, sister. इस चीज को हमें That's सीखना why, है। you know, if you see, we have definition for everything. If you ask faith, we have definition, and we are very particular about that. For belief, there is a definition. For understanding, there is a definition. You know, if I would have not spent time in studying those definitions today, do you think I can understand and apply it? Yes. I can't just say, you know, I know, but I'm not so sure. When I am not so sure, that's the time the seed has been stolen. There is a labor, just like how the child has to put labor, we have to put the labor. Okay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, you can say the closing prayer. Sister Brenda is there? Brenda is not here. Actually, yeah. So Diana is there? Sister Diana? So I put you mute. Sister Diana? Sister Diana? Yes, sister. Yeah, can you do the closing prayer? Can we ask Manju, Sister Diana? Yeah. Sure, anyone. Manju? Sister, please unmute Manju. Yeah, I already spent time. Manju, praise the Lord. Yes, sister. Praise the Lord. Can you do the closing? You were hearing? You were listening? Yes, sister. Yes, sister. She listens. Okay, so next time I can ask you questions. Yes, sister. Yes. Yes. Okay. You can do the closing prayer. Yes, sister. मैं करवाऊं? सिस्टर मंजू, आप प्लीज क्लोजिंग प्रेयर करें। ओके सिस्टर। धन्यवाद प्रभु। Hello. Sister Manju got disconnected. Okay. Sister Diana, you can do it. Okay. Yeah. प्रभु यीशु ईसा मसीह, पवित्र आत्मा, खुदा, हम सब यहाँ मिले आपका वचन सीखने के लिए, आपका कलाम सीखने के लिए। और जैसे हमने आज सीखा कि बहुत बारी बहुत साल हमने ऐसे गुजारे जहाँ पे हमने आपका कलाम सिर्फ सुना और शायद पढ़ा भी, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं थी और हमने उसको समझने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आज हमने सच्चाई सीखी
आपके कलाम से कि वो जो बीज हम सुनते हैं, आपका कलाम जो एक बीज है जो हम सुनते हैं, हमने उसको बस नहीं सुनना है बल्कि उसको सीखना है और समझना है, और वही हमें फसल मिलेगी 100 गुना। हम आपका धन्यवाद करते हैं सिस्टर जोसलिन का, ब्रदर जॉनसन का, और हम उनके फैमिलीज को ब्लेस करते हैं। हम जो भी सुनने वाले हैं, जिसने भी आज लॉग इन किया, हम उनको ब्लेस करते हैं। यीशु, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, कि आप उनके फैमिली को ब्लेस करें और वो बीज बोए अपने दिल में, उनकी समझ हम सब में बढ़े, और हम यही समझ और भी लोगों को दे ताकि वो भी समझे, और आपके किंगडम में बहुत ज्यादा तादाद में हम शैतान की तरफ नहीं बल्कि आपके किंगडम में ज्यादा होते जाएं। हम लोगों को बस खाली सिर्फ शिफा के पीछे ना दौड़े, लेकिन जो आपका बीज है, जो कलाम है, वो समझने पर दौड़े। I thank you and praise you, Father God, for blessing this day, blessing this evening, where we all gather to understand the truth, that the truth which gives life and life in abundance, oh Lord. I thank you and praise you, Father God, for sending you the only seed that you had, which is Jesus, and the Jesus that became flesh, the word that became flesh, and the word that you sent out, which brings health and healing to all our flesh. I thank you and praise you, Lord God, for giving us this understanding of your word, that Sister Jocelyn made it so simple for us to understand, so that we may not become the pathway, but we become the good soil, and we get a better and a greater understanding of your word, Lord. I thank you and praise you, Jesus. So all the listeners, all those people who have logged in have got, we bless them and their families, oh Lord. I thank you and praise you, Father God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Our families are blessed in your mighty name, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Okay, see you all. See you. Missing Sister Branda. Okay. Bye, Sister Jocelyn. Bye, bye. Thank you so much. Thank you, Sister Pearl. Thank you all. Bye. Thank Good you all. night. Thank you.